Yes. Welcome, friends. First of all, I show my sincere gratitude towards your waiting for 1 week extra time for my trouble with cough and all. Unable to continue the program to the full. So, thanks for bearing with me. Okay. So now we'll start again. This. अर्शिया सबको दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, बिल्कुल बिल्कुल Yes, हाँ बस चलिए ठीक है, I can start. Okay. So letters C जैसे हम पहले से ही बात करते हैं. Letter C has only curve strokes and curve represents female dominant trait, which is caring, sharing, gentleness, humility, sensitivity, all those things. So these traits are basically such as nurturance, sensitivity, sweetness, supportiveness, gentleness, warmth, passivity, cooperativeness, expressiveness, modesty, humility, empathy, affection, tenderness. And basically, if you see the curve, curve is nothing but a part of circle. And circle, if you see from scientific point of view, the between two dots, the maximum area covered by the figure is a circle. It is nothing but a circle. And circle has a, you see the radius. Radius is, if you see the radius is all equal. Whatever radius at whatever angle you draw, it is equal. But in another shape, other than circular shape, if you see there is a diameters are varying in square and triangle and all, they are varying. But if you see, this is the beauty of circle, which is having, there is no change in the diameter. The line, diameter is a basically line. It means effort, means the caring, sharing Mother Earth gives everybody equally important. So it is indirectly, if you see, these all traits are reflecting in this way. And circle is basically a maximum area. It means the person who has a more dominant with or influenced with with curve stroke. It means that fellow is a caring, sharing, and it gives maximum and equal caring, sharing for without any biasing. So this is this thing we must keep in mind whenever we see the curve stroke. It means that is a caring, sharing one, and the writer wants to do the maximum effort to explore the dimensions and the quality which is related into his present way of writing the things. Okay. So now we will move to various traits again. This is skillful, versatile, competent, sociable, fall in love. If you see the curve is basically, if you see, when smile is a curve, smile a curve which straight out all the tension. So जब भी हम देखिए again curve और straight line में feminine and masculine का जो मेजर डिफरेंस आप देखिए, हिटलर का चेहरा देखिए, चेहरा सुकड़ा हुआ था, लंबी लंबी लाइनें हैं मूछ के इधर पे, जबकि आप मुस्कुराते हैं तो एक राउंड बनता है. तो जब भी आप एक्सप्रेशन देते हैं, जब एक्सप्रेस करते हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप वो एक्सपांड करने से वो कर्व आ जाते हैं. आपकी मुस्कुराहट भी, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ कर्व. सो it is all the actions are basically some way or other it is converted into graphic form. Okay. किसी का माइक थोड़ा सा, अर्शिया माइक थोड़ा सा, सतीश जी माइक
हाँ ओके सर, आवाज बंद हो गया. Okay. हाँ चलिए ठीक है. And because the and it is a same way, it is a basically feeling, basically enjoyment is ultimately the best feeling which cures your body and all, and you are indirectly you are very sensitive also because nobody wants pain and all, so at ease basically. So and because if you see the circular shape between any 2 point is a circular shape, you don't go directly, you go via rounding, making the maximum loop sort of thing. So this again tells the about patience. You are not in a hurry, you take full liberty to do the thing, and you are basically rounding off and covering the area. Apart from that main line, which is the minimum effort, you are putting minimum effort, and you are patient and ease and enjoying. And it is again, if you, there is a whenever there is a curve is there, it making a round, and also there is no sudden change in direction. The change in direction means some angle. So the angles are basically representing your kind of painful or sudden jerk change in direction. So those things are not there. So it is a gradual change in a curve form. So that's why it is a, you are keep on enjoying different phase and different period of time over a period of time for particular matter or some action. So this curve is basically again something which is pleasant and mother oriented things, traits which writer tells about in their handwriting. And also it is a loyalty and natural talker. It is well established that the person who takes more time, they definitely they talk the different dimension and related things. So it will consume time. So they are definitely a natural talker. Okay. So this is a just the curve, which is part of, which is the major integral part of C. Now we come to the C further details, how the C letters further gives the more graphological meaning. So C, if you see, it is on the left side. It is a basically wherever the strokes are coming to the left side of C, it represents self. And when it comes to the right hand side, it represents the other. And when this C start and are at same, it means it is limited to self. Okay. Self and other. But when other is, it goes further right, then it is you are thinking more about social. It you shift to the social environments. And when there is a small hook at up, it is a grudge, it is a personal grudge and related to mother and parental, basically depends on the other factors. But when C is written like E with open, lot of opening, then it is a good listening capacity. When it is a, the grudge further travels and make a spiral loop inside, then it is indicating of hiding tendency and taking something, inside without knowing. So it is a hiding tendency. When there is a, then before the grudge, when it starts like a hook, then it is a stress social environment for self or for self related to parents. But when it goes to down, it is definitely a social environment. But here, if you see on the top, stress is social environment impacting person is indirectly related. But when it is this hook and ticks are at bottom, then it is a
directly related to the social, and he is involved in that. Just like this here, C is further extended here, and here is small hooks are there. And when C is a perfect round and balanced one, it is a comfort. It is a social, which I say it is a pure curve, some feminine trait. It is 100%. So it is a more comfort with the social environment, enjoying and enjoying life and caring, sharing others also. Vice versa. When the C becomes thin, it is more height than the width. Then it is a pressure anxious of social environment. That fellow, the curve is reduced to a line. It means that fellow has compromised basically a lot of comfort. So he has shed out a lot of comfort. That's why it becomes C vertical with more linearity. So this is what the tall C says about. Here it is just about just different than vertical. It grows to the more horizontal direction. So again, horizontal direction means it is further extended from the perfect round curve to is more extended. It means that fellow is getting habitual of more lethargy. So he wants and expect a lot of caring, sharing from others. So this is again, if you see this, both C, vertical thin C and wide C, both has a total graphic traits accordingly. When C bottom strokes extended, it is irritative or negative environment, because it is overdo is dangerous. Overdo is negative. Ati sarvatra varjit. So this is a very basic principle which applies to every graphic strokes, and it letters may be English or Hindi or whatever. So this is the basic personality which is affecting the writers. When C becomes like arrow, pointed arrow sort of thing, then it is a more analytical and pointing, and basically if you see, it is a contrasting, it is sudden change in direction and pointed. So there is a sort of pressure or feeling or pinching something. So peoples are not at ease, so they become more analytical. They particularly for particular points and all. So it is, there is a point and there are certain changes and angles and more linearity. So this is all basically, it loses the more feminine trait and it becomes more towards masculine with the negative flavor. Okay. Sir, I have a question. First line में you have said that it's left side is for self and right side is for others. Others, yes. ये Yes. मुझे समझ में नहीं आया कैसे? Actually, when we write, most of the languages are written from left to right. So you are progressing towards right and future. So this is a normal way of meeting with the society or in your goal. So, and definitely at some point of time when you move towards some action or effort for particular thing, then you move out of your boundaries. So that's why it is becomes the others domain, or others domain is nothing but social environment and relationship. Okay. Okay, sir. So if C has a starting stroke, then it's for ourselves. Hmm. And what does Yes. that mean? Yes, it means you are taking care of yourself and the person who related to you. And just like Arun Jaitley signature, if you see that fellow, at the end he makes the stroke towards left. It means that fellow takes care of very good
care of even his driver, son, family, and all. Even the children of their driver and family is are studying at in the same university and college with the same status. So it tells about how you are concerned about your own fellows, very close fellows, and yourself. Basically. This is a common trait you can apply as per your logical connectivity with the writing, and if you connect with the real life, the things will be you will find that it reconfirms what we are saying. And in the letter signature with letter A series, which I have already done. If you want, you can go through that letter, and the document is available. If not, you just give me message. I'll forward it. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay. Now you come to the Cristiano Ronaldo. You see that this letter C is basically, if you see, it is a more comfortable. There is a balance. But the thing is, the baseline is very 45 degrees. So the goal is very high. This fellow decides very higher goals. Okay. And if you see Cristiano Ronaldo, the R basically, the second letter of in a signature, it represents your hobbies and all. So the R is overgrown, and C is basically goes within that. So this fellow has passionate about his hobby, and which is nothing but football. And this fellow writes jersey number in that 7 number. So his passion also reflected in signature. Sir, So you mean Huh? the second letter is in the signature means the surname or the second alphabet of the name? No, second name, middle name is basically, it is a middle name. It is joining family. First Middle name name will be taken is for the yes. Middle name is hobby, and okay. family name is represents to your family, mother, father. Career. Okay, this is the Okay. basic of signature. Okay. Thank you. sir, इसमें जो at the end of the signature there is a dot in the shape of a circle. Yeah, it is So- also basically shape. It is basically reconfirming. I am the world ends here. So, and definitely, if you see the Cristiano Ronaldo, he is achieving his skills and all to the topmost, and nobody goes beyond him. Sir, circular dot का क्या meaning होगा at the end of the Dot, signature? any dot. Okay. Same meaning. Meaning is same, but circular means Okay. this fellow has some artistic way to tell. Rather than if it is a plain dot, it means it is a no more logical way. But this circle means again it is a more soft and Okay. soft way, respectful way. Okay, not Okay. fighting. That is what. Thank you, sir. And if you see, there is a lot of garlands, basically shallow garland. This tells about the wealth accumulation at different pockets. And same way, it is a if you see, it is in the lower zone, so it is a libido-driven drive also. So this fellow has a definitely lot of extramarital relations and all, so which you can see in the history which is given in the smaller letters. Colin Powell. Colin Powell is a basically administrator, United States Secretary. If you see the Colin is limited to CL, and if it's Colin Luther Powell actually, so L is limited to, as L is reflected as a C. Then P has basically Powell is a surname. Surname is a family name. So, and you see the P basically goes back and forth and connecting every full signature basically. And with the parabolic
sharp ends here. And there is the length of P is very high. It is this fellow has a very great drive, energy as well, and P reflects the life goals. So this fellow has a very higher life goals. And if you see the Powell double L, it goes parting away sort of thing. So this tells this fellow has put all the things to do the thing. So he is impatient to see the results. So this is the Colin Powell, and this fellow, if you see, this fellow is a basically soldier, professional soldier for 35 years, holding a variety of command, self positions, and rising to the rank of general. सर इसमें एक्स नहीं बन रहा, एक बार ऊपर देखें जहाँ पे टी को ये कट कर रहा है पी, वहाँ पे एक एक्स बन रहा है ऊपर में. एक्स नहीं बन रहा, वो कट कर रहा है बेसिकली, वो कट कर रहा है बेसिकली, कट करके सर एक्स डबल एल को. वो वैसा एक्स नहीं बन रहा जैसा मतलब प्रॉपर बनना चाहिए. वो क्रॉसिंग नहीं है. इट इज द क्रॉसिंग बट नॉट द एक्स, बिकॉज एक्स हैज एक्स के दो स्ट्रोक होते हैं, वो सेम साइज के होते हैं नॉर्मली. ये सेम साइज नहीं है, बिकॉज ये कट करते हुए वो आगे जा रहा है, फिर पीछे फिर वापस जा रहा है. So that's why it is not considered as a S. It is a crossing basically. Okay. Okay. Clint Eastwood. He's a film theater director, multi-talented person. But here there is, if you see the parabolic curves in the C and E, is a very dominant, and his whole personality and the drive is an energy level is reflected by the parabolic curves 1, 2, 3, and even L also. So this is overdue. So this fellow has a more libido-driven efforts and actions in his life. So and because the legibility, yes, इस लेटर इस सिग्नेचर में ईस्टवुड में EA के बाद S जो है वो स्क्वीज हुआ है. स्क्वीज हुआ, राइट. ए तो क्लियर है, जबकि यहाँ आपने जो डेफिनेशन दी उसमें लिखा है स्क्वीज्ड लेटर ए, और यहाँ एस हुआ है स्क्वीज. उसका मीनिंग क्या होगा? हाँ, स्क्वीज्ड हुआ है बेसिकली मिडिल जोन जो स्क्वीज्ड ए एंड एस. ए बोलोगे तो पेट होगा और एस बोलेगा तो वर्टिब्रा आ जाता है बेसिकली. But this fellow has a lot of habit of drinking and all the, so because of that you can Sorry, see. sir, ए का मतलब क्या सर? सर ए का स्क्वीज का मतलब ए का ए जो है ए एंड ओ represents your stomach part and represents your vertebra. Vertebra भी already बीच में है, तो उसमें जब शॉर्ट हो जाएगा तो दिस फेलो इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली. उसका पेनफुल ज्यादा कंडीशन रहेगा. हाँ, तो ये चीज इसमें आती है. तो ये इनकी लाइफ में आप जब पढ़ेंगे तो ये सब चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी इसमें. एंड बिकॉज ऑफ दिस pelvic curves are more. You just read this. Eastwood refuses to confirm his exact number of offspring. ये बताने से ही मना कर दिया कि मेरे कितने बच्चे हैं. बहुत लोगों से संबंध, और and because it is driven by the more libido driven thing, because this parabola is between the circle and straight line. It is energy, but when it goes overdue, it will have impact on the more sexual partners and libido driven things. Okay. Colin Ryan Kaepernick. Fellow is a sports personality. You see here, if you see the letter C, it is in the lower zone, it is extended to more, and the letter L is basically connected with sharp hook and lifted up.
And if you see, the slant is also very extreme forward. So this fellow has a lot of the extra C का जो bottom का stroke है, it means social concern. Then hook है तो मतलब stress. Then lift हो गया मतलब mental flight. So this fellow is very much bothered about the social causes and all, social environment things and all. And that's why this fellow process is a very good, he spent very heavy efforts on racial injustice, police brutality, and systematic oppression in the countries. And Kaepernick was also active on social media for fatal police shooting, Elton Sterling and Philando Castle. So this is how the social concern with positive things, because here there is a balance clause is there. It is energy, but it is not over. And here in the sea itself, it is a phallic formation. It is for the energy, but not over to. सर इसमें कॉलिन एंड कैपर्निक दोनों ही इनकम्प्लीट लिखे हैं। कॉलिन में हाँ। ओ एल जा रहा है, ओ एल Right, एल right. है, हाँ और हाँ कैपर्निक में के जो है वो इतना क्लो, जो अपर जोन में क्लो है, राइट। तो इसका क्या मीनिंग होगा सर? हाँ, इसका मीनिंग और ये सेम डबल चीज अगर डेकर आप, साइन है, हाँ, मल्टी अभी लेवल आप सिग्नेचर है। अभी जैसे कॉलिन पॉवेल में भी आप देखें, जितने भी जो बड़े लोग रहते हैं, व्हेन दे जी। थिंक इन अ बिग वे साइकिल, तो उनके दे आर बिकॉज दे कैन नॉट do each and everything, so they have decided their role to particular things, not all the things, because one fellow cannot do everything for the, जैसे आपकी शादी हो रही तो आप क्या कर सकते हो, आप हर बंदे का एक लिमिटेड रोल हो जाएगा, कोई खाना बनाने में है, कोई किसी में लगेगा, तो दे इवन दो दे आर अटैच्ड टू द वेरी लार्जर गोल, बट दे आर लिमिटेड टू सर्टेन गोल्स विच दे कैन स्पेसिफाई, सो दैट्स वाई वो लिमिटेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे कॉलेज में भी सीएल पे खत्म हो गया, लूथर का एल आ गया, पावेल का पी हो गया, ओ डब्ल्यू ई ये भी खत्म हो गया, तो खाली एल आ गया। सेम वे यहाँ भी आप देखेंगे तो इधर भी सेम वे, यहाँ पे कॉलिन रैंड का तो सी एंड एल है, देन आर एंड के ही आ गया इसमें, एंड एन आ गया इसमें, तो इवन दो दे आर हैविंग लार्जर गोल्स, but they are limited to certain very specific role to achieve the goal basically. So they have compromised other things which they cannot do due to some restriction, practical reasons, so they are not doing, and it also shows that they are uh, other way, if you see, they are not able to do each and everything, so they compromise that basically. और स्पेशली जैसे आप देखेंगे तो जिनके ये लेटर जिनके पूरा क्लियर है, जिसमें पूरा नाम दिया हो, इट मींस दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू, एंड देयर गोल्स आर अलाउइंग सम टाइम्स टू do the each and every activity, but here because of stress, time pressure, they are not allowed to spend more time for detailing, so they reduce that activity to certain area which they can fulfill very well. Okay, अनुपमा जी। और सर यहाँ मल्टी लेवल सिग्नेचर का क्या मीनिंग होगा? हाँ, बहुत सही बोला। मल्टी लेवल मीन्स, देखिए जब भी मल्टी लेवल मीन्स आपका जो अंडरलाइन है डबल हो रहा है, मतलब इसकी हाइट ज्यादा हो रही है। जितने भी मल्टी लेवल जो होता है, बेसिकली द नेम written under the thing is act as a base platform. So आपने देखा होगा जो कोई भी 5 स्टार होटल है वो कभी भी जमीन पे नहीं होता, आपको हमेशा एक रैंप करके जाना होता है। सेम वे योर पर्सनैलिटी, जितने लेवल्स होंगे आपका हाइट उतना ही होता जाएगा, एंड द सेम थिंग इज रिफ्लेक्टिंग हियर दैट जो एल है लिफ्ट हो रहा है उसका, विथ स्ट्रोक विथ एंगुलर स्ट्रोक्स लिफ्ट हो रहा है। नॉट ओनली दैट, हायर जाने के लिए एनर्जी लेवल भी ज्यादा चाहिए, तो बेस लाइन भी उनका 45 डिग्री जा रहा है। जो बंदे लोग का डिटेलिंग ज्यादा होगी तो देखिए बेस लाइन समहाउ हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा,
because they are not able to reach the higher goals, so उनके goals थोड़े नीचे हो जाएंगे. जैसे 45 डिग्री होगा, it means goals हायर सेट करना एक बात है, बट उसको अचीव करने के लिए उतनी एफर्ट्स, उतनी एनर्जी होना एक दूसरी चीज है. आई थिंक तो सर मल्टी लेवल साइन करना एडवाइजेबल है, या तो इसका तो एक्चुअली है नेगेटिव इफेक्ट भी है है ना? नहीं नहीं नहीं, मेरा खुद का मल्टी लेवल सिग्नेचर है, मैंने बताया था पुराने वाले इसमें. मेरा नाम भी इतना बड़ा है, अगर एक लाइन में लिखेंगे तो एक लाइन पूरा हो जाता है. और ये कई बार प्रैक्टिकल डिफिकल्टी भी आती है. अभी आप जैसे देखिए अमिताभ बच्चन का, आप भी देखें, डबल उसमें आ जाता है. मेरा भूपेश सिंह डुंडले 3 है. पूरा अगर आप पूरा लिखेंगे तो आधा लाइन, आधा पेज से ज्यादा कवर करता है, उतनी जगह होती नहीं. सो डेफिनेटली माय फैमिली हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट इट लेटर पार्ट ऑफ लाइफ. तो वो जो नीचे वाला जो लेटर्स आते हैं वो किस कहाँ पे आ रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट. जैसे करिश्मा कपूर का आप देखिए, करिश्मा कपूर का के और के दोनों है ना, फर्स्ट नेम एंड फैमिली नेम दोनों एक के नीचे एक आ रहा है लेफ्ट साइड में. जबकि मेरा जो सिग्नेचर है, मैं कभी भी जो सरनेम जो मैं नीचे लिखता हूँ वो कभी भी स्टार्ट में नहीं आ रहा, एंड में आ रहा है, क्योंकि मैंने सेल्फ मेड एफर्ट्स. सर जी, हाँ जी. करिश्मा कपूर में हम्म. उसकी जो क्या मदर है, शी वाज a prominent lady and a pusher to bring her to the stature. राइट जो बबीता थी. तो क्या हाँ, मदर बिल्कुल का सही. रोल आपके भी जिंदगी में जास्ती स्ट्रांग है? नहीं नहीं, मेरे में मदर का रोल डेफिनेटली स्ट्रांग है. और मगर सर मेरा जो मुझे है एक डाउट है. हम्म. सर मैंने सीखा है कि डबल सिग्नेचर होता है, यानी डबल स्टेप सिग्नेचर होता है. ऊपर नीचे जो सिग्नेचर होता है उसमें मेटीरियलिस्टिक होते हैं, और जो मम्मी ने ज्यादा पैसा कमाने की इन्फ्लुएंस देते हैं, यानी ऐसे एडवाइस देते हैं, ऐसा मैंने सीखा है. तो वो नहीं नहीं, सही बिल्कुल है सही है. या? डेफिनेटली देखिए, जब भी आप सक्सेस करेंगे तो कहीं ना कहीं मटेरियल तो आएगा ही आएगा ना. आप सक्सेस करेंगे तो ओके. पैसा आएगा. सक्सेस, वो पैसा तो आएगा. वो मटेरियल तो, मटेरियल इज basically byproduct of the success. It is not materialistic, but material is a At the mother byproduct. program. Yes, yes, it is a byproduct. जब सक्सेस होंगे तो क्या होगा, पैसा ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा तो क्या होगा, आप कुछ एसेट्स भी बनाएंगे. ठीक है. ओके सर. सर ये जो कॉलिन रैंड कैपर्निक का सिग्नेचर है, कॉलिन में उसने COL लिखा है, नीचे के लेटर एक बार आप बता सकते हैं क्या? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे लिखा है हाँ उसने. हाँ, एक्चुअली वो के तो क्लियर दिख रहा है आपको. एक्चुअली वो आर सर स्टार्ट किया उसने, जो पहला जो कर्व है वो आर का बेसिकली देखा जाए, ओके. रैंड का. देन उसके बाद आर का जो स्टेम को ही उसने लेके उसमें के जो सेकंड स्ट्रोक बना दिया उसने, आर का हाँ आधा बनाया, और फिर उसी आधे में के को यूज कर लिया. उसी स्टेम को नेगेटिव स्पेसिंग बोलते हैं. मतलब ऐसे बंदे जो रहते हैं जो क्या मिनिमम रिसोर्सेज से काम करते हैं और एक बार में 3-4 चीजें एक साथ कर लेते हैं, एट वन टाइम 3-4 चीजें एक साथ कर लेते हैं. तो दीज आर द ट्रेड्स व्हिच हैज अ मल्टीपल हैंडलिंग बेसिकली. So, and that's why this fellow is known for his if you see the here social media commentary activists, इसमें देखें आप, मल्टीपल रेशियल जस्टिस के लिए बहुत सारे लोगों को कोऑर्डिनेट करना और बहुत सारी चीजें एक साथ खुद ही कर लेते हैं. ये बेसिकली यू कैन से ही कोऑर्डिनेशन बेसिकली. तो ये इस टाइप के जो लोग होंगे बेसिकली दे आर वेरी गुड एट कोऑर्डिनेटिंग द वेरियस थिंग्स एट सेम टाइम. ओके सर, थैंक यू. Okay. Christopher is a film personality. If you see there is a hook at top, and T cross bar is very very wide. It is covering 6 letter width. So this is basically a leadership. अगर ये वही, मैं पिछले बार भी जैसे मैंने बताया था कि ये जो टी क्रॉस बार है
3 से 5 लेटर विड्थ है तब तो ठीक है, इससे ज्यादा होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव मीन्स ये चर्च ओरिएंटेशन में और चले जाएंगे और थोड़ा सन्यासी किस्म का काम करेंगे। तो एंड दिस इफ यू सी दिस, द क्रिस्टोफर रीव इज एक्टिविस्ट फॉर एनवायरनमेंट, ह्यूमन राइट्स, कॉज ऑफ आर्टिस्टिक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये अपना जो इनका जो दायरा होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम लीडरशिप दे गो टू द वेरी हायर लेवल, हायर कॉन्शियस लेवल पे चले जाते हैं, जो कि संन्यास किस्म के हो जाता है। तो जब भी आप देखें किसी भी बंदे का मिडिल जोन बहुत छोटा होता जाएगा, देखिए स्क्रिबलिंग हो रहे हैं इनके मिडिल जोन, और टी क्रॉस बार ज्यादा हो रहा है। तो ये बेसिकली समाज सेवा या सामाजिक उद्धार उसके उस तरफ ये ट्रेड्स चलते हैं। सर अनडिमांडिंग चर्च ओरिएंटेड मींस व्हाट? हाँ, अनडिमांडिंग मीन्स सेल्फलेस, लीडर जो है सेल्फलेस, ठीक है। ओके, चर्च थैंक ओरिएंटेड, यू। हाँ चर्च ओरिएंटेड मीन्स चर्च मतलब ये फॉरेन में जो उनमें चर्च को जैसे रिलीजियस हाँ रिलीजियस हाँ, जो मैं रिलीजियस सन्यासी बोल रहा हूँ, ये उसका ही ट्रांसलेशन है। चर्च ओरिएंटेड, चर्च ओरिएंटेड मींस विदाउट एनी पर्सनल बेनिफिट यू आर हेल्पिंग अदर्स, सो दिस इज कॉल्ड चर्च ओरिएंटेड। ये मैं हम बहुत यूज करते हैं। सर ये इन्फ्लेटेड, सर इज हाँ, इट बिकॉज ऑफ द मिडल जोन स्क्वीज्ड? yes, and simultaneously supported by the extra T crossbar length, and that too T crossbar is on the top, not on the middle. Just see, very high but reachable. ओके, बट सर इट इज कटिंग द लेटर एच, तो उसका कुछ मीनिंग होगा? जो क्रॉस बार है वो एच को कट कर रहा हाँ, है, हाँ उसको तो pierce कर आइए। रहा है। जो H हाँ, बेसिकली जो ईगो है, वो ईगो को ही कट कर रहा है ना उसको। मम्मी लाइट जला दी हाँ, यार, इन्फ्लेटेड, अटक गया वो कमरे की लाइट जला देते ना। म्यूट कर इन्फ्लेटेड H लीजिए। है। हाँ जी, इन्फ्लेटेड। हाँ जी। हाँ, तो वो ईगो ईगो को ही पंचर कर रहा है बेसिकली। और सर रीव का लास्ट लेटर ई इज सो मच एलोंगेटेड, व्हाट डज इट मीन? अगेन सेम थिंग ना, चर्च ओके, ओरिएंटेशन क्या है? मतलब लोगों को भलाई करना है ना, हेल्पिंग टू स्टेप फर्दर। ये अगेन ओके, उसका, जब आपको ये एक ट्रेड देखते हो तो ये इसका सपोर्टिंग ट्रेड, अगर ये नहीं होगा तो मतलब कुछ गड़बड़ है। मतलब हेल्प तो कर रहा है बट कहीं कोई बंदा बहुत बड़े लेवल पे हेल्प कैसे करेगा? जब आगे बढ़ेगा तो एंड स्ट्रोक ज्यादा होगा, वो नेचुरल है। ये सब चीजें अपने आप आएंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो सर जिनके एलोंगेटेड एंडिंग स्ट्रोक्स होते हैं, हाँ, दे वो आर दे हेल्प टू स्टेप हाँ, फर्दर, दे हेल्प अच्छा, टू स्टेप फर्दर, मतलब सर रास्ता। लेकिन उसका मीनिंग ये भी होता है कि दे आर्ग्यू अलॉट, तो कौन सा ट्रेट लेंगे, आर्ग्यू अलॉट और हेल्प अदर्स, नहीं या फिर आर्ग्यू का सिग्नेचर और हैंडराइटिंग में अलग अलग होगा? नहीं, नहीं आर्ग्यू के ट्रेड्स, कोई भी ट्रेड्स को कंफर्म करने के लिए 2-3 चाहिए। आर्ग्यू के बाकी ट्रेड्स भी हैं, जो आर का हो गया या टी का हो गया, वो ट्रेड्स भी देखेंगे तब जाके हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। Again, this fellow is known as a Clara ski brochure, known as a greens. So here it is not C, it is basically G, letter G. It looks like C, but it is a G basically. But here if you see, even if you see the letter G, the middle stroke जो back आता है, जो half में convert है, वो जाके left में जा रहा है, वो which is crossing basically stem. तो self destruction है and past में जा रहे हैं basically. So this fellow has a lot of basically different situation which this fellow has hurt. So this is and second letter if you see, it is a like R का ऊपर आप देखें, just like a flag warrior. So this fellow is a very passionate boat competition. So if you see, this fellow has a
travel through the boat from Mississippi River to New Orleans to Minneapolis in a houseboat they built. And with all difficulties and all they have reached, and engine trouble they encountered with the and lot of law enforcement, and they achieved their goals. So this is again the passion about the boat sailing and all. It comes here. सर इनका बेस लाइन देखिए, इनका बेस लाइन जो है वो इरिटेटेड नहीं होगा क्या? इरिटेटेड इरिटेट, नहीं हाँ, है क्या? इरिटेटेड इसलिए है क्योंकि ये क्रॉसिंग हो रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए लेफ्ट प्लांट हो रहा है. दिस फेलो बिकॉज ऑफ ही गॉट हर्टेड वेरी बैडली, but still he overcomes and then becomes stable. The arrow, flag, and passion which drives her to do the things. And this fellow is a very good singer, and singer means communication. Communication means capital letters. And the singer is basically enjoying and artistic. So that art is reflected by the half made heart shape, but it is not full. So there is some loss of the things which is very near and dear, and the same thing is reflected by here. It is, if you see in the first two letters, there is a lot of angular things, but later on these angle things are not there. So this fellow has overcome with the lot of difficulties and punishment and bad things, and that's why it becomes a left slant also. और सर उसका एम और ई स्टेम शेयरिंग है, उसका क्या मीनिंग होगा? एम और ई शेयरिंग. हाँ, इसको बोलते हैं नेगेटिव स्पेस. जैसे आपने उसके पहले भी देखा आपने, यहाँ पे जो आपने पूछा था, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे के एंड आर सब यूज कर लिया, तो multiple actions with at the same times, and they don't waste the thing. They try to save the time, efforts and money. Okay. जैसे बोलते हैं ना, बंगाली लोग बोलते हैं मछली की चर्बी से मछली को सब्जी बना देने का. तो तेल यूज नहीं किया, मछली के चर्बी को ही तेल बना के उसी से फ्राई कर लिया. It is similar sort of that. ठीक है अनुपम जी? Thank you, sir. Thank you. So this is basically saving the things. Effort, times, money. सर प्लीज एरो के बारे में बताइए. Arrow basically, arrow and the flag, basically the passion about the boat sailing, na? And arrow gives the direction to go towards the sea for reaching new goals and all. So that is what these two things are, because of her passion. And you can see small things. These all things are there. It is already written. And sir, she has money and not spending. She has stored it. Money basically reflects by the, here if you see the S, basically money is reflecting in the lower zone connections or curves basically. So here if you see that money is stored and that same money is spent through, basically that money is spending into journey and the boat, making boats and all. If you see this red text, you will see all those things with all the fines and problems and all. This fellow has made his journey, boat journey, completed. So he spent a lot of efforts, time, money, and all those are diverted into the movements, basically moving towards moving through the boats, basically. He's not accumulating, he's spending basically. Okay. Okay, sir. He has a lot of money, but not storing as a passive thing. It uses as an active investment. Here, Camila Cabello. Here, if you see the Camila is basically the sea is not a perfect round; it is a thin, so it is more personal basically. And two A's are basically open, so very talkative. Then
If you see L is, there is a parting away forward slant. So there is an emotional conflict. And if you see the heart shape, it is also crossing cells, and there is a very lightest to the heaviest. So it this fellow invested very heavy energy and time in the love related things and actions, and he is cross checking double dot. So he is ensuring his joy. But again, the heart shape has a lot of pointed things, so it is failure in that. So she's not getting the kind of enjoyment and success. So he's a irritated and unhealthy love relation. This is what. सर यहाँ एक्सिंग बन रहा है, यहाँ पे ये लव का बन रहा है एक्चुअली, यहाँ एक्स वही क्रॉस हो रहा है, तो जो लव एंड जो एंजॉयमेंट चाहिए वो मिल नहीं रहा, वो क्रॉस हो रहा है. एंड अगेन सेम थिंग इज अगेन reconfirmed by double X again here. So he is more particular about the things, but it is not fulfilling the joy and success. It is crossing basically. Just see the Tumblr posted the Cabello had a reblogged tweets in 2012 and 13 surfaced on Twitter containing racial slurs, derogatory language, and including use of slur nigger. So this is all negative things basically. Very open mouth. So she tells, so a top A open hai. So again she is talking too much and negative things. No, this is Caitlyn Jenner. ये मैंने एक प्रोग्राम में बताया हुआ है. This fellow is basically a very good actor, but this fellow has changed the sex. So, so the left one signature is when this fellow is a male. Here you see the male dominant is a lot of angular strokes are there connected. A lot of linearity will be there and dominating basically the T cross bar. आप कैटलीन का जो T cross bar देखिए dominating है, ऐसा down करके जा रहा. So very dominating person, but after sex change you see the curves are improved and the middle zone angular strokes become the scribbling. So this is how the personality differs. After sex change, the thought process changes, thought pattern changes, and accordingly the signature and handwriting. Excuse me. सर जी बोलिए. यहाँ पे जो अपना जे में पैराबोलिक जो स्ट्रोक है, पैराबोलिक स्ट्रोक है, वो लोग के अपर जोन में लेगा कि हम लोग लोअर जोन में लेंगे? देखिए ऊपर का अपर स्ट्रोक है जे में, ऊपर का ये यहाँ पे ये एक्चुअली वो तो सेकंड जो कैटलीन जेनर का जो जे जेनर है वो तो नीचे है, वो तो सेकंड लाइन में है. बट जे बेसिकली आप देखेंगे तो अपर जोन उसको कंसीडर क्या कर देगा? नहीं, कंसीडर करने का यस अपर जोन ऑफ सेकंड लाइन अपर जोन ऑफ सेकंड लाइन. यस, तो क्या लोअर जोन नहीं कंसीडर करेंगे हम लोग? लोअर जोन नहीं करेंगे. लोअर जोन मींस जो जब लेटर का जोन refers to the letters, not the line. Here it is a second line. Okay, line cannot be considered as a zone basically. Line is a line. Line is consisting of so many letters. Okay. The zone belongs to the letters basically. Line and zones are both different things. So here if you see in the second right hand side, if you see the Jenner ने तो अपर जोन को भी नीचे लिखा है, बट ऊपर के भी ऊपर जा रहा है. देखिए. हाँ जी. And this again parabolic and very exaggerated things. So that again this fellow is overdue for the sexual relations and all. So again he the person has become from girl to boy or boy to girl? Boy to girl.
ओके सर. Left is boy and girl, and the photos also I pasted here. Oh, okay, but this letters, this post, I will change it to different. Yes, sir. That's why I got no, confused. Yeah. Okay, no, thank no, you. no. Okay, that's what. Actually, everything requires very meticulous things and all, which normally when I prepare the thing, mind goes in some more important things rather than this editing sort of thing. Thank you No for problem, sir. No pointing problem. thank you for pointing this, because these are very small things which also matters a lot, because it people connect with that sequence itself. This Charles, Prince Charles, if you see this letters again, the C is it looks like a L or I basically, with the top stroke, the hook at the top. And middle zone is very prominent. And L, if you see, the L has an upper zone. The upper zone is basically missing. Here is in the left side. So it is known as a intellectual grab. Because ये तो राजा महाराजा रहे, इनको इतना जरूरत ही नहीं है दिमाग लगाने का, तो वो यूज ही नहीं हो रहा है. It doesn't mean that this fellow doesn't have the intellect or analytical ability, because if you see in the right hand side there are upper zones, but in the left side there is no upper zone. So these fellows are basically, being a privileged guy, they simply enjoy the life and they don't bother about small things, so they don't have that sort of analytical and all those things. So the upper zone becomes zero. This is called intelligence blank. सर यहाँ आपने मेल डोमिनेंट लिखा है, उसका ट्रेट क्या है? मेल डोमिनेंट देखिए ना, सी क्या है? सी तो गोला होता है ना, यहाँ पे सी कैसा है? लंबा हो गया ना, बिल्कुल लंबा हो गया. सिंपल है, सिंपल है. ठीक है. हाँ सर हुक भी है, सी में काफी बड़ा हुक भी है, तो वो बहुत क्या बड़ा वो हुक है. सोशली ही इज ट्रबल्ड? No, personally, actually, socially not. He is a parental, because वहाँ पे जो अंदर आप देखेंगे, अगर राजशाही खानदान में इनके आपस के लफड़े हैं, तो उसका वो स्ट्रेस है बेसिकली. ये उसको शो बता रहा है. वो सब चीजें खुल के आती नहीं है मीडिया में, बट इफ गो थ्रू दिस यू विल फाइंड. सर और एस को इतना ड्रैग करके नीचे किया है, उसका क्या मतलब है? मतलब पूरा लोअर जोन तक ही दोनों सिग्नेचर में लाया है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला. तो इसमें दिस फेलो बेसिकली wants everything. He doesn't want to help society basically. Whatever things are there, he wants for himself and within his circle, closer friends. This is what. सर जी ये जो चार्ल्स का एस है, जो लास्ट अक्षर है, उसको सर बैक स्ट्रोक में लेके जाता है, तो ये आदमी क्या कमिटमेंट फोबिक होगा? ये कभी भी हेल्प नहीं करेगा किसी को. ये जितना भी करेगा अपने लोगों के लिए, अपने लिए करेगा, अपने लिए करेगा. जो एक्सटेंडेड स्ट्रोक, जैसे मैंने पहले इसमें पीछे लेफ्ट पे जाता है तो अपने के लिए. हाँ बस अपने लिए और अपने फैमिली के लिए. ये शुरू में बताया था, जैसे ई का एक्सटेंडेड स्ट्रोक है, जो रीव का था. ई देखिए पूरा ऊपर जा रहा है. और इसमें एस भी अगर आप देखें तो एस का जो नेचुरल एंड स्ट्रोक है वो लेफ्ट वर्ड में ही जा रहा है. तो ये नेचुरल है, मतलब ये कभी भी, मतलब कितना ही फोर्स करोगे, ये इनका ये नेचुरल स्टाइल है बेसिकली, अपने लिए करने का, दूसरों के लिए सोचेंगे. हम लोग सर अपना से नॉर्मली जब भी हम लोग सिग्नेचर का स्टडी करते हैं, तो जब बैक स्ट्रोक चले जाते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये कमिटमेंट फोबिक है, कि वे वचन पे नहीं रहेगा, he will not stand by the words. तो ये डेफिनेटली ना, वचन पे क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसको देना पड़ेगा तो एक्सटेंडेड राइट में जाएगा. तो सही बोला आपने. उसके डिफरेंट डायमेंशन है, आपको फिर वो सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि हाउ लॉजिकली दे आर इंटरवीव्ड बेसिकली. एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं सभी कुछ. वो आपको एक दूसरे से लॉजिक, आपने जो बोला है आपके सवाल में ही आंसर है, मैंने कुछ नया आंसर नहीं दिया. ओनली चीज वो देखने का तरीका है, जो आगे पीछे हो गया, गंबल हो गया, मैंने सीधा कर दिया. बस चीजें मैंने नई नहीं डाली, चीजें उसी में है, वहीं पे आंसर उसी में है.
खाली उसको सर- एक नए तरीके से, नए नजरिए से देखने हैं और कुछ नहीं। सर सेल्फ ब्रांड कैसे क्रिएट किया है? हाँ, सेल्फ ब्रांड तो क्रिएट किया है, क्योंकि उस क्लियर दिखना, CHARL दिखा तो दिख तो रहा है उसमें। तो जो लेजिबिलिटी है तो ब्रांडिंग है, जिसकी Okay. लेजिबल, ठीक है। अगर 100% लेजिबिलिटी तो 100% ब्रांडिंग, 50% लेजिबिलिटी तो 50% ब्रांडिंग। अगर इनलेजिबल है मतलब ब्रांड क्रिएट नहीं कर पाया। तो ब्रांडिंग इज बेसिकली लेजिबिलिटी, ठीक है। जिसकी पहचान पूरी उसके सिग्नेचर पूरे, जिसकी पहचान अधूरी उसके सिग्नेचर अधूरे, जिसकी पहचान नहीं वो घुग्गी मारता है। तो घुग्गी तो है नहीं यहाँ पे, मक्खी का वो चाला वाला तो कुछ नहीं किया इस टाइप का, ठीक है। ठीक है, ओके। ये नहीं, here if you see the C, first letter C, C और H के बीच में बहुत बड़ा एक गोला आ रहा है। तो इट मींस इनका जो कंसर्न है, सोशल कंसर्न हैज अ वेरी डीप एंड वेरी बिग bottleneck बेसिकली। पर्सनल इश्यूज भी है एंड सोशल कंसर्न्स भी बहुत ज्यादा। सी with root upper and long connecting strokes from the next letter H. Simplified P in single parabolic stroke and T cross bar and with prominent T cross bar. Pratt का जो आखिरी आप देखेंगे तो ये जो लास्ट का जो T है उसमें क्रॉस बार पूरा, T का स्टेम तो छोटा हो गया, लेफ्ट स्लैम्प हो गया एंड क्रॉस बार उसको क्रॉस करके वापस जा रहा है। It has a outlook towards society with problem concern, put efforts time to maintain the relation, because क्योंकि सर्किल है तो वो सर्किल बेसिकली केयरिंग शेयरिंग एंड रिलेशंस तो होगा उसमें, मेंटेन रिलेशन, सिंपल yet creative intellect drive for caring and sharing and with very high social concern. तो सर जो बैकवर्ड स्लैंट गया है और एक नोट बनाया एट द एंड ऑफ द सिग्नेचर, हाँ, व्हाट डज इट मीन? इट मींस ही, वो बंदा जितनी भी एक्टिविटी है उसको ही इज नॉट एबल टू, जो फिनिशिंग एक्टिविटी है, पैकेजिंग, उसकी जो डिलीवरी फाइनल, वो ढंग से नहीं हो रही है। इज नॉट एबल टू कंक्लूड द थिंग्स इन पॉजिटिव मैनर। ओके, कोशिश तो पूरी की उसने, ड्राइव भी बहुत लगाया, आगे भी गया, बट समहाउ थिंग्स आर नॉट, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ things he delivers. ओके सर। और उसके वन गोल मोर या थिंग, जिस लेवल पे वो सोच रहा होगा देने के लिए ना, उस लेवल पे नहीं हो पा रहा। और क्रीज में जो तो एच लिखा है, सेटिस्फाइड, एच तो इज इसलिए वो छोटा भी हो गया, लेफ्ट भी हो गया। ओके। और जो क्रीज में एंगुलर स्ट्रोक, एंगुलर सी स्ट्रोक आ के गया। बाद जो एच है, नो, सी के बाद जो एच है, तो इट इज पियर्सिंग समवेयर एंड इट इज नॉट टचिंग द स्टेम ऑफ द एच। तो वहां क्या है रीडिंग सर? एच जो यहाँ जो पियर्सिंग हो रहा है, एक्चुअली जो पियर्सिंग के पहले और सी का एंड स्ट्रोक, हाँ, वो पियर्स नहीं है, वो पियर्स नहीं है एक्चुअली, वो स्टार्ट ऑफ एच है बेसिकली, जहाँ वो एंगल स्टार्ट हो रहा है, जो सडन चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है उसमें, जो आप बट इट इज अवे फ्रॉम द स्टेम, स्टार्ट ऑफ एच है एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ। सर एच का स्टेम कट हो रहा है ना, उसका क्या मतलब है? और उसके बाद क्या है, वो जो सी, और उसके जो सी का जो एंड स्ट्रोक होता है उसके पहले है, उसके बाद का पूरा ये एंगुलर स्ट्रोक तक जो कनेक्शन आ रहा है, इट मींस जब लोअर जो मिडिल बेस लाइन से अपर जोन जा रहा है, इट मींस दिस फेलो हैज अ वेरी गुड कैपेबिलिटी टू लिंक विद द रिसोर्स एंड प्लानिंग बेसिकली, एंड उसमें स्ट्रेस आ रहा है। तो और बेसिकली, और उसी के उसका ये जो स्ट्रेस है ये उसी का बता रहा है कि ही इज पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स टू कनेक्ट द physical thing, material and resources towards the planning for happiness and creativity and things what he wants to. और सर एच जो है वो कनेक्टेड नहीं है स्टेम के साथ, अवे फ्रॉम द स्टेम हुआ है एच, लेटर एच। तो बीच में जो गैप बना है, गैप जो बना है एच में, वी जैसा,
वी वी जैसा, जैसा, सॉफ्टवेयर हाँ वी हाँ, जैसा, हाँ जी। राइट राइट, हाँ। ये बेसिकली अगेन इसमें भी आप देखिए पैराबोलिक है, और ये इसको बाद में अगर आप देखेंगे तो इसमें हो सकता है कि ये लेटर जैसे एच और बी सेम टाइप के हैं, तो बी जो होता है हार्ट की प्रॉब्लम बताता है, तो मे बी हैविंग सम प्रॉब्लम विच हैव टू फर्दर लुक इनटू दैट, तो हैंडराइटिंग में और बाकी चीज देखने से पता लगेगा, वो अभी उतना ओके सर, ओके, वो डायमेंशन हमको चेक करना पड़ेगा उसमें, यस यस। ठीक है। ये देखिए स्मोकिंग है, जैसे we just drank and smoked and weed and worked minimal hours just enough to cover the gas. So again ये देखिए डेफिनेटली जब ये ज्यादा वीड ले रहा है, जब ड्रग्स वगैरह ले रहा है बंदा, तो डेफिनेटली हार्ट का प्रॉब्लम होगा उसको फिर, बिकॉज ऑफ दैट लंग्स का सर प्रॉब्लम होगा था। ड्रग्स हाँ वगैरह कौन से राइटिंग में दिखेंगे? ड्रग्स एडिक्शन यहाँ इसमें दिख रहा है क्रिश पेट में। हाँ, ये जो एच जो आप जो शार्प बोल रहे हैं ना, ये बेसिकली हाँ। पेन है, ये वही चीज है। आगे और इवन जो जो लेफ्ट स्ट्रैंड जा रहा है बेसिकली, अब ये है, हाँ। इसको हमको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये इसलिए ड्रग्स हो रहा है क्योंकि ये स्टेम को, जैसे किसी ने बोला ये एच काट भी रहा है, तो सेल्फ हार्मिंग हो गया बेसिकली। सेल्फ हाँ। हार्मिंग क्या चीज होती है? सेल्फ हार्मिंग वही ड्रग है बेसिकली, ओके आप ओके। ड्रग ले रहे हैं, तो दैट वे इट इज रिलेटेड। इवन जो टी क्रॉस बार आप बोला, ये पी को भी कट कर रहा है, खुद को भी कट कर रहा है, और एच भी जो है इसको यहाँ भी कट कर रहा है, तो इट इज बेसिकली सेल्फ डिस्ट्रक्शन। सो सेल्फ डिस्ट्रक्शन क्या हो सकता है? कोई अपने आप को चाकू तो नहीं मारेगा, यही है कि गलत खाना, गलत सोबत है, गलत काम है, ड्रग्स पीना, बॉडी को इनडायरेक्टली दे आर हार्मिंग देमसेल्व्स। सर एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट का जो लूप है उसको टी कंसीडर करेंगे या फिर कुछ और टी है, करेंगे? क्योंकि टी है, प्रैट में हाँ डबल टी आ रहा है एक्चुअली, वो टी ही है। और अगेन टी, अच्छा बोला आपने, डबल टी की जगह सिंगल टी है, तो दिस सर फेलो एक और अगेन भी लॉस्ट। सर एक और भी क्वेश्चन है कि प्रैट में वो पीछे की तरफ आ रहा है, टी जो है वो आगे लिखना चाहिए था, मतलब राइट में, लेफ्ट में, उसका कोई स्पेशल मीनिंग है क्या? हाँ, स्पेशल मीनिंग जो टी का जो लेटर है, टी का जो लेटर को एक सिंगल स्ट्रोक में अगर क्रॉस बार से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो बंदे हैं मतलब बहुत जिद्दी किस्म के होते हैं, दे वांट टू डू एट एनी कॉस्ट। सर जो इसमें बड़े वाले लूप बने हुए अपर जोन के अंदर लोब सारे, ये अगर एडिक्शन है तो वीड एडिक्शन वाले हैलुसिनेट बहुत करते हैं। राइट राइट, हाँ बिल्कुल सही है। उनको मतलब जो वीड एडिक्शन लेते हैं उनके अंदर हैलुसिनेशन भी होता है, जो नहीं होती चीज वो भी दिखती है, इमेजिनेशन पावर बढ़ जाता है, रिलैक्स हो जाता है माइंड। तो इसीलिए क्या आप ये देखिए, ट्रूथ हम कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए सिंपल है, आप जो बोल रहे हैं ना, एक्चुअली ये मेंटल हेल्थ की जो इश्यूज है, जब भी कोई मेंटल हेल्थ इश्यू होगा तो बेस लाइन स्टेट नहीं होगी, मैंने पहले भी बताया आपको। तो बेस लाइन आप देखिए, एच बिल्कुल प्लंज हो रहा है नीचे, और पी फर्दर नीचे प्लंज हो रहा है, और उसका जो टी का क्रॉस बार है वो बिल्कुल ऊपर जा रहा है, तो बेस लाइन टोटल इरेटिक है। जब भी बेस लाइन इरेटिक होगा तो देयर इज अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज एसोसिएटेड विद दैट। ओके सर, थैंक यू। एंड जो हेलुसिनेशन है, इट इज ऑल मेंटल हेल्थ बेसिकली। ये सर उसमें इमेजिनेशन, इमेजिनरी चीज नहीं दिखना, वो यस सब। यस यस, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये क्योंकि हर चीज तो आप ऐसा लिखने बैठे हैं तो एक ही सिग्नेचर में बहुत समय हो जाएगा, तो जितनी जी इम्पोर्टेंट जी चीजें थी बताई, तो इसलिए मैं ये जो प्रोग्राम करने का मतलब, ये कई लोग बोलते हैं यार आप तो दे देते हो प्रोग्राम पूरा, शेयर भी कर देते हो, मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो बता रहा हूँ, जो प्रोग्राम में हम जो चीज बता रहे हैं, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप जब कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप अपने ही से पूछोगे, आंसर कहाँ मिलेगा? और बहुत सारे लोग अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो दिस इज लर्निंग बेसिकली। हम जो 200-500 रुपए तो कुछ भी नहीं है, जो ये जो पैसा दे रहे हैं इसी का पैसा है, बाकी डॉक्यूमेंट तो मैं दे रहा हूँ क्योंकि आई वांट पीपल टू लर्न, एंड किसी ना किसी को डाटा और ये सब काम तो करना ही पड़ेगा, तो मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं करता हूँ, क्योंकि लर्निंग जो है वो तो करनी पड़ेगी। 2 घंटा आप निकाल के बैठे, कोई बंदा जब पढ़ेगा मुश्किल 10 मिनट पढ़ के बैठ जाएगा, उसको क्वेश्चन उसके दिमाग में रह जाएंगे, लर्निंग कहाँ होगी? नॉलेज नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, ओनली इन्फॉर्मेटिव रहेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, बट उसको यूज नहीं कर पाएगा वो।
जैसे बुक स्टोर वाला है, उसको मालूम है कि मैथमेटिक्स की बुक कौन सी है, फिजिक्स की बुक कौन सी है, बट उससे क्वेश्चन पूछोगे तो नहीं बता पाएगा. सो देयर इज अ गैप बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. तो जब आप प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दिस इज नॉलेज, और ये हमेशा रहेगा आपको. फिर आपको कहीं पढ़ने की, रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आप इंफॉर्मेशन कितनी सारी बुक पढ़ लो, पढ़ते रहो, आपको उसको एक्चुअल में करने के लिए रट्टा मारना पड़ेगा या फिर उसमें फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अदरवाइज वो नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होता. नेवर. सर एक और क्वेश्चन है, पी का हाँ. जो स्टेम है उसी पर उसने टी बना दिया है, तो डज Right. दैट मीन कि वो नो रिसोर्स पी नहीं, कंजर्वेटिव है? नहीं. पी को स्टेम में टी नहीं बनाया है. एक्चुअली टी जो छोटा वाला जो स्ट्रोक है ना, हल्का सा लेफ्ट स्लैंट में, वो टी है. और एक दो टी है, वो दो टी की जगह एक टी लिख रहा है. तो ही लॉस्ट समथिंग, ही इज नॉट एबल टू हैंडल एवरीथिंग because of time, resources, and pressure, and all those things. Because they want to do the things in a hurry, because they have limited time and resources to achieve very big and very higher goals. So the scale is totally mismatched. So they are definitely, there is, you are not able to do everything. तो कुछ ना चीज सर छूटेगी. यहाँ पर So shall we stop? Can we take a break? हाँ हाँ हाँ, अर्षिया वही बोला था, 5 मिनट का ब्रेक ले रही हैं हम. Okay, okay, okay. So now we come to the Cam Newton. He is basically a sports person. If you see here, C is basically again a letter which drives by the curvy strokes, circular strokes. Here you see there is no curve at all. The person has more actions toward the goal, just like एक लाइन में दौड़ रहे हैं जैसे, वैसा है. तो गोल घूमने वाला केयरिंग शेयरिंग का चक्कर ही नहीं. This fellow has a very stressful and the straight line, pure linear stroke है. देखिए कर्व तो है ही नहीं. Okay. And extended stroke used as a middle bar. और जो C का जो extended stroke है, उसको उसने ए जो लेटर है उसका कैम का, उसको कैपिटल में कर लिया. तो दिस इज बेसिकली ही इज वांट to do things and same times capital letter means communicate कि मेरे को करना है और मैं ये बोल रहा हूँ. So he is basically doing and shouting both at same time. सर ऐसा हो सकता है कि ये न्यूटन का एन हो? No. वो ए के बदले मुझे ज्यादा न्यूटन का एन दिख रहा है. बट वो एन अगेन जो होता है, आप जो बोल रहे हैं वो पॉसिबिलिटी है, बट वो जो एन होता है बेसिकली कैपिटल एल एन जो रहता है उसका फॉर्मेशन डिफरेंट होता है. ये जो ए फॉर्मेशन ज्यादा लग रहा है इसको, कैपिटल ए ज्यादा लग रहा है. यू सी व्हाट सर सी तो बहुत डेफिनेटली एंगुलर है. बिल्कुल हाँ, वही लीनियर हो गया ना, पूरा लीनियर हो गया, कर्व खत्म हो गया. सो दिस फेलो इज मोर, इज नॉट बेसिकली सी का जैसा जो कर्वी होता है, केयरिंग शेयरिंग सेंसिटिव, वो सब चीजें है नहीं. इट इज अ मेल डोमिनेटिंग रिजल्ट ओरिएंटेड. मेरे को एक रास्ता है, बस शेर की आंख दिख रही है, आगे के पीछे कुछ नहीं दिख रहा. जबकि जो कर्व वाला रहेगा तो उसको शेर की आंख, वो आंख तो दिखेगी नहीं, बाकी चीजें ही दिखती रहेगी, पत्ते, ये मौसम, वो वही सब चीज में दिखता रहेगा. तो वो कर्व हो जाएगा बेसिकली. ही इज डाइवर्टिंग टू द surrounds an environment more, and this fellow is just like कि उसको खाली चिड़िया की आंख दिख रही, बाकी कुछ नहीं दिख रहा, ना पेड़ दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है वो. and he is very stressful that way. And he is basically shouting also because that A is basically capital A clear दिख रहा है. He may be writing N, but he is maybe camouflaging his surname or his family, because Newton is a family.
But again, if you consider this n also, so then n is basically lower case, and lower case का size बढ़ गया. So again the interpretation is same. Lower case का अगर size भी बड़ा होगा तो वो भी oratory and communication में आ जा रहा है. So ultimately the finding goes to the same thing. Anupama ji. Yes, sir. The finding basically आप M भी ले रहे हो या A भी ले रहे हो, ultimately वो जो logically वो वहीं पे जा रहा है, same जगह, same, it comes to the same place basically. And जो shouting है basically जो अब देखिए again उसको reconfirm हो रहा है, जो T cross बार है pointed है, piercing है, चिल्लाने वाला, बोलने वाला, बदला लेने वाला. तो again बदला लेना, काम करना, straight, nonsense approach, nothing, caring, sharing, straightforward, all those things, all masculine and driven traits are there. सर सी सर में ये आपने कहा सेकंड लाइन में हाँ एक एक करके. सी में शाउटिंग कहाँ बताया आपने सर? सी में नहीं है, ए जो है, ए है, ए कैपिटल हो गया, कैपिटल मींस कम्युनिकेशन. और ए जो अगेन जो ए है वो अगर आप उसको ए भी एम भी कंसीडर कर रहे हैं तो वो लोअर केस का एन है बेसिकली देखा जाए. जो लोअर केस का जो एम जो कैपिटल का होता है उसका जो बीच वाला डंडा है ना लेफ्ट हैंड आता है, इसमें लेफ्ट हैंड का है ही नहीं कोई. It is not a capital N, it is a small n with big size basically. सर न्यूटन का जो टी है फिर उसके बाद हाँ. एन तो गायब हो गया है, तो बेसिकली ही Again. हैज लेस टाइम और व्हाट? Yes, he is under pressure. He is under pressure. That's why वो जो O और N को जो हम घसीटा स्क्रिबलिंग बोलते हैं ना वही आ गया उसमें. Again वो भी पॉइंटेड है. पेन फ्लिक है यस, उसमें. क्लब स्ट्रोक है. हाँ, क्लब हाँ, स्ट्रोक. club. सर जो सेकंड लाइन है उसमें उसने पिक लिखा हुआ है और उसके पहले कोई साइन बनाया, व्हाट डज दैट मीन? ये एक्चुअली ये जो आपका जो हैशटैग होता है ना बेसिकली हैशटैग ही बनाया हुआ है बेसिकली. He wants to address, he wants to show that I am doing these things. So he ensuring those things. Again वो communication का part है कि I am picking up right things. I am doing right things basically. Okay, because this is not the part of the name, he just has written that You're right. hashtag pic. Yeah. Okay. Yeah. He wants to reassure the communication basically. Communication को reassure हो रहा है basically. Okay, sir. सर उसमें सी में हुक भी था ना एक हाँ टॉप में. हुक है. हाँ टॉप में हुक है. वही तो स्ट्रेस है ना, पर्सनल स्ट्रेस. he don't bother about extra things and जो उसके लिए सपोर्टिंग चीज है उसको कोई मतलब ही नहीं है. he is very stressful. उसको खाली एक लाइन दिख रही है, वो लाइन ही आ गई. सी में जो बोला वो खत्म हो गया, लीनियर हो गया पूरा. एंड दिस स्ट्रेस अगेन जो क्लब स्ट्रोक्स हैं या पॉइंटेड टी क्रॉस बार ये सब उसमें भी बता रहे हैं. lack of emotion, hasty reaching goals as fast as possible, lack of caring, trouble, and these are troublesome childhood. Actually वो आप जो बोल रहे हैं जो स्ट्रेस है वो चाइल्डहुड का भी ट्रबल है, ये लिखा हुआ है. troublesome childhood आपका जो प्रिसाइज आंसर है, troublesome childhood है. because this is a starting stroke, so it means basically जो स्टार्टिंग स्ट्रोक होता है वो आपकी जिंदगी, आपकी पूरी जिंदगी सिग्नेचर है बेसिकली. ठीक है, आपका जो स्टार्टिंग स्ट्रोक है वो चाइल्डहुड को समहाउ डोनेट करता है, वो पीरियड को डोनेट करता है. उसमें अगर डॉट्स ये आ गया, हुक्स आ गया, टिक्स आ गया, जर्क्स आ गया तो वो बताएगा. वो नहीं अभी होगा तो मदर फादर रिलेटेड बेसिकली. अगेन इट इज रूमिंग अराउंड द चाइल्डहुड ओनली, अर्लियर पार्ट ऑफ योर लाइफ. Sandra Peterson. She is again from film side. Again, if you see here, C का जो vertical stroke है पहला ऊपर बड़ा वाला और नीचे phalanx claw type का है hook में. सर स्ट्रेट लाइन इन सी जो स्टार्टिंग स्ट्रोक है उसका क्या मतलब होगा?
ये देखिए ना, एक्चुअली क्या है, जो स्टार्टिंग स्ट्रोक है, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ लेटर सी, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा स्ट्रोक एंड फ्लरिशमेंट। और ये जो एक्स्ट्रा फ्लरिशमेंट जो होता है, दिस दिस रेफर्स टू योर स्किन बेसिकली। सो दिस फेलो हैज अ लॉट ऑफ स्किन प्रॉब्लम। बचपन में ये जल गई थी, इनके बहुत सारे 30% ऑफ बॉडी जो स्किन ग्राफ्ट हुई है इनकी, तो ये बता रहा है, ये लिखा हुआ इसीलिए, स्किन ग्राफ्ट टू कवर over 35% of her body to heal. So scalded by boiling water, गर्म पानी से जल गए थे, तो ये उसका ही सब है। एंड सेम वे अगर आप देखें माइकल जैक्सन का भी जो है, उसमें भी जो फ्लरिशमेंट है, जो एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स जो दिए हैं, वो इट रिप्रेजेंट्स बॉडी। माइकल जैक्सन के भी जो आप स्किन की प्रॉब्लम देखिए, कितनी सर्जरी कराई, बहुत सारे खाने उसकी, तो जितना एक्स्ट्रा फ्लरिशमेंट स्ट्रोक है, इट reflects your skin, outer part of your body. And the lower part में जो hook बना दिया है, and ticks भी है छोटा सा, this tells about the issues in social relations, because C का जो extra stroke है वो नीचे जा रहा है, deep में जा रहा है, and the hook आ गया, मतलब stress है उसमें, so it tells about the issues in the social relations. Charlie Sheen. सर फेलॉन्स क्लॉ जो आप बता रहे हैं, वो ट्रबल चाइल्डहुड भी बताएगा क्या? नहीं, देखिए चाइल्डहुड जो बताएगा, जो हमेशा पहला जो स्टार्टिंग स्ट्रोक में बताएगा, यहाँ भी बैलेंस क्लॉ तो नीचे आ गया, ये यहाँ पे जो एंड हो गया, मतलब उसकी पर्सनालिटी, वो बंदा ने एज ए पर्सन जो है, जिसको 10 या 12 साल में उसकी पर्सनालिटी जो ग्रो होना चाहिए, वो हो गया उसका पहला लोटा पर्सनालिटी इंडेक्स। मतलब ही इज द पर्सन हैज aware of his personality, his abilities and all, he is aware। जैसे 10 साल 6 साल से 10 साल के बीच में आईने में आप बंदा अपने आप को पहचानता है, अपना सूरत देखता है, आइडेंटिफाई करता है, that is what basically PPI एक्चुअली। पहला लेटर जो है PPI, पर्सनल पर्सनालिटी इंडेक्स। बाकी चीजें तो फर्दर डायमेंशन में आ जाते हैं इसमें, ठीक है। हाउ अदर थिंग्स आर देयर, फैमिलीज, connections and zones and all that, so फिर कहानी चलती है तो and if you see the Phelan's claw, this fellow has a relationship with more women, so again basically so libido में जो lower zone में जाएगा and hook किया, तो social concerns तो है, but with the same sex. This is has been a relationship with the woman. So the Phelan's claw basically related to your sexual areas of life. Again, here if you see this Charlie Sheen, can you see, you can count the parabolic, the phallic stroke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so 9 numbers of basically parabolic strokes, which is crossing each other with different size, with different angle. So it is a pure, basically you see the libido is inbuilt, bhara hua ठूस के, and that's why this fellow has a lot of, this fellow is HIV positive, and because of many partners and the libido driven drive. So this is just see definition. Sir, is there any particular trait that can define HIV or any blood related issues? ब्लड रिलेटेड इश्यूज जो हैं, अभी ये जो सिग्नेचर है, ये तो स्टेट ऑफ माइंड है विथ हेल्दी टू डू इट, बट जब HIV कंफर्म हो जाएगा तो उस समय का सिग्नेचर चाहिए, वो उसमें आपको दिख जाएगा। उसमें HIV में बेसिकली इट है ब्लड रिलेटेड, तो उसमें फ्लो में देखेगा, वो फ्लो में जैसे डॉट्स आएंगे आपके, इसमें जो अभी तो इसकी कंडीशन हेल्दी कंडीशन में जो अभी वो HIV को के तरफ जा रहा है, HIV हुआ नहीं, ये जो सिग्नेचर्स बताया ये तो हिस्ट्री है, बिकॉज ये वो डिसकंटिन्यूड प्रेशर, हाँ वो सब आएगा। ये गलत जगह पहुंचा नहीं, बट गलत डायरेक्शन दिख रहे हैं इसमें जितने सेल्फ कटिंग है बहुत जगह, तो वही हो गया ना कि रिलेशन सेल्फ हार्म हो गया ना, बेसिकली रिलेशनशिप कट हो गया, ओवरडू हो गया इसमें।
सर और मनी मनी माना जाएगा कि नहीं? बहुत सारी जगह पर ये लूप्स हैं जो मनी तो माना जाएगा, जैसे सी का लूप है तो इसमें माना जाएगा इसमें, बट बाकी जगह जो है लूप्स हैं वहां पे वो मनी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो इट इज अ पार्ट ऑफ कनेक्टिंग स्ट्रोक टू द नेक्स्ट लेटर। एंड और अपर अगेन जोन में भी है, मनी लोअर जोन में होता है ना सर? मनी लोअर जोन में होता है, बेस लाइन में बेसिकली बेस लाइन Okay. में होता है। सर पर सिग्नेचर में कहीं भी, इसके नाम में कहीं भी लोअर जोन लेटर नहीं है, चार्ली शीन, पर Right, सिग्नेचर वो में base एक line- लेटर नीचे जा रहा है। हाँ वो शीन का एस है बेसिकली, विच इज सीन एक्चुअली एस। इफ यू सी द लाइक दिस, वो फैलेंस क्लॉ बना के फिर एच बना रहा है। एच अगेन पार्टिंग फॉरवर्ड स्लांट है एच, देखिए अगेन। Then Okay. again there is a small very sharp bench and also again this is the indication of pain only. सर This एंड is स्ट्रोक नीचे की something तरफ जा else. रहा है, Clubs हाँ का- एंड स्ट्रोक नीचे जा रहा है, अगेन वही है। ये जो है HIV एंड द स्ट्रेस है बिकॉज इरेटिक बेस लाइन है, तो इसका आप पुरानी आप पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो दिस फेलो इज हैविंग लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज आल्सो। So if you read this this fellow has a lot of mental issues, health issues भी होंगे इसके साथ में। HIV definitely is an issue which is has a lot of mental health related. And mental health as I have shown earlier, C के बाद जो L है ऊपर चला गया, then उसके बाद जो S है पूरा नीचे प्लंज हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। So erratic base जी है। एस को सर क्लॉ में कंसीडर करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल क्लॉ में करेंगे, इसका S बिल्कुल क्लॉ में आएगा, इसका S क्लॉ में आएगा। And that's why HIV जो है it is ultimately combined into physical, mental health and stress. Everything is combined into the one trait basically, if you see that way. The HIV Abnormal इसके relations signature में भी में- आएगा। सर इसके Yes, yes. सिग्नेचर में एस लेटर जो है उसको एक बार रिट्रेस कर सकते हैं क्या? मुझे एस कहाँ है वो समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ ये देखिए अभी ये C खत्म हुआ यहाँ से, CL CMH हो गया। उसके हाँ बाद सर। फिर इसने ये L चालू किया, ये L हुआ और H, ये S यहाँ से स्टार्ट होता है मिडिल से, ऐसे करके Yes. यू गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये गोला मार के फिर ये आगे गया, फिर ये H आया। ओके ओके सर, हाँ तो क्लॉ है उसमें, यस। Again, I So also this represents middle से abnormal start relation. होता है। हाँ abnormal relation, एस abnormal एस उसका relation, Abnormal सलमान खान relations, के I will जैसा, say. हाँ S उसका सलमान मिडिल खान से के स्टार्ट जैसा होता एस है उसका। है। हाँ राइट बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, पूरा तो नहीं बट हाँ। सॉरी सर, फिर ठीक से है, कहिए stroke किसके जैसा है सर, किसके जैसा है? अरे वो सलमान खान के में भी ऐसे ही है। तो इसमें जो एच जो ऐसा लेटर बी लाइक बना है नीचे से, उसका क्या हाँ। मीनिंग होगा सर एच में? एच में वही देखिए बेस लाइन में जा रहा है और एच ऊपर चला गया बेसिकली, जो एस का जो डाउन स्ट्रोक है बिल्कुल नीचे और एच ऊपर चला गया, तो ये बेसिकली बेस लाइन ब्रेक हो गया बेसिकली। तो मेंटल फाइट मतलब उसका जो कॉन्फिडेंस, फेथ और जो आप बोल रहे हैं ना जो इलीगल एंड रिलेशनशिप इश्यूज, फेथ है जो बेसिकली बेस लाइन, क्या फेथ है बेसिकली, फेथ एंड कॉन्फिडेंस, वो टोटल ब्रेक हो गया बेसिकली। और एच जो है सर जब भी एस के बाद जब भी एच आता है, एच जब भी हिट करता है सरनेम के इनिशियल को, तो उसका मतलब क्या सर? सेकेंड अल्फाबेट जब भी हिट करता है सरनेम इनिशियल को, तो उसका मतलब क्या होगा सर? अच्छा एक मिनट, ये एच यहाँ पे हिट नहीं कर रहा, वो तो फॉर्मेशन है, वो लूप है, एच का लूप है बेसिकली देखा जाएगा ना। तो एच का जो फैलेंस क्लॉ के बाद जब आप देखेंगे तो वो एच का लूप है। तो एच का लूप अच्छा। तो बेसिकली लूप जो है नॉर्मल इन्फ्लेटेड, मतलब ही फील्स प्राइड कि मैंने ये कर लिया। एच का स्टेम सर हिट करता है ना, एच का स्टेम तो हिट करता है ना एस को, हिट कर रहा है, एस को हिट कर रहा है बेसिकली, वही है। इसको जो एच जो है, एच का जो बेसिकली ही इज बेसिकली हिटिंग द सेल्फ बेसिकली, वो क्रॉस कर रहा है अपने आप को, जो एंजॉयमेंट या जो एफर्ट्स डाल रहा है, रिस्पेक्ट फील रहा है, बट एट द कॉस्ट ऑफ sacrificing himself, hitting himself basically. हिटिंग इज Hitting फैमिली himself. लाइफ।
हाँ, yeah, personal Legal basically family as life. as a individual, yeah. और as शीन बेसिकली फैमिली है तो फैमिली को डिस्टर्ब होगा बेसिकली, डेफिनेटली यू आर वेरी राइट प्रकाश। सर ये जो इसका, हेलो, प्लीज कंटिन्यू। यस, ये जो इसका सर, ये जो इसका एल है ये इन्फ्लेटेड है, तो सर जो मतलब अगर कोई भी जैसे स्टेम स्ट्रक्चर है और वो इन्फ्लेटेड है तो मतलब ज्यादा इन्फ्लेटेड है तो मतलब वो फेलिक स्ट्रक्चर हम उसे कंसिडर करेंगे? फेलिक भी करेंगे। एक्चुअली क्या है, आपको देखना पड़ेगा, जैसे इसका जो बेस लाइन ठीक नहीं है, फॉर्मेट एंगल भी ठीक नहीं है। नॉर्मली जो इन्फ्लेटेड होता है, जो ओवर इन्फ्लेटेड मीन्स ओवर ईगो होता है, नॉर्मल इन्फ्लेटेड होता है यानी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, और इन्फ्लेटेड नहीं है, स्ट्रेट लाइन है तो नो सेल्फ रिस्पेक्ट, डायरेक्ट डजंट थिंक मच अबाउट हिमसेल्फ। तो ये जो स्टेम के जो इन्फ्लेशन होते हैं वो इस तरीके से उसको आपको सर यहाँ ये भी लिखा है, कि he has raised fund for AIDS people, AIDS survivors and all, तो and donor and fundraiser, so इसके सिग्नेचर में कहीं इसका इंडिकेशन है, a donor और a fundraiser और social worker? क्योंकि एंड स्टॉक आगे जा रहा है जी, आगे जा रहा है ना, हेल्प कर रहा है, और अपर जोन तो है ही बेसिकली, उसको इंटेलेक्ट तो है, अकल तो सब कुछ है, बट वो फंस गया अपने चक्कर में, हो जाता है बंदा सर अपर जोन में लूप्स काफी है, तो इसका मतलब ये भी है क्या कि मतलब एडिक्शन एंड ऑल, क्योंकि वो हेलुसिनेटेड टाइप का अपर लूप्स, अपर, बिल्कुल सही बोला, वो सब चीजें हैं, क्योंकि इरेटिक बेसलाइन है तो मेंटल हेल्थ भी होगा उसमें। अब उसको क्या है, आपको पूरी जब उसकी पूरी जिंदगी में एक महीने का 3 महीने का आपका पूरा डाटा लेके देन यू आर एबल टू कनेक्ट, और उसके जो सिग्नेचर्स भी हैं वो हर पीरियड 1 साल 2 साल के वो पूरा बना के जब करेंगे ना, देन यू विल एबल टू कनेक्ट द थिंग्स प्रॉपर्ली। दिस इज द ओनली इंडिकेशन विच इज लीड्स टू सम वे। हम तो आप रास्ता बता रही है अहमदाबाद वाली, 2 घंटे बाद अहमदाबाद आएगा ही आएगा, बट अहमदाबाद जाने के बाद वहां का सिचुएशन डिफरेंट होगा। अभी तो हम रास्ते में, हम अहमदाबाद के बारे में डिफाइड नहीं कर सकते, राइट? तो आपको हर स्टेज पे उसका उस एनवायरनमेंट और वो सब चीज के डाटा चाहिए, बैकअप, वैलिड बैकअप, तब जाके उसको आप एक प्रॉपर क्या बोलना चाहिए, क्लैरिटी एंड रियल एनालिसिस, तब जाके वो कंप्लीट होगा। दिस इज ओनली इंडिकेटर कि आप बॉम्बे नहीं जा रहे, अहमदाबाद जा रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ जी बोलिए। सर किसे you see here the even B and C is a total curve, but again with vertical small knot and vertical stems. Okay, again T cross bar is very width, so it is a pure feminine multiple talent parental stress। जो parental stress को बता रहा है, जैसे मैं बताया C का अपर स्ट्रोक में एक नॉट, छोटा सा नॉट भी फॉर्म कर रहा है, तो वो पेरेंटल स्ट्रेस है। और टी क्रॉस बार जैसे हम पहले ही बताया था 6 लेटर विथ का है, तो डेफिनेटली वो फिलैंथ्रोपिक सर्विस में जाएंगे। सर ये जो अभी सिग्नेचर हम डिस्कस कर रहे हैं उसे मैंने देखा थोड़ा सा उस पर गूगल में सर्च करके, तो ये जो टी क्रॉस बार है ना, इट्स नॉट एक्चुअली, देयर इज नो टी, आई थिंक इट इज एन ओवर स्कोर, और उसका जो एच है ना वो उसमें मुझे एच कैपिटल दिख रहा है, और उसका जो मूवमेंट है वो सारा फ्लोइंग वाला, that goes ahead and makes H, and then ER, CH ER, उसमें H जो है ना कैपिटल लिखा हुआ है विथ अ क्लोइंग का इफेक्ट, और टी क्रॉस बार जो है ना जिसे हम टी क्रॉस बार देख रहे हैं, इट कुड बी इंस्टेड ऑफ अंडरस्कोर, इट कुड बी ओवरस्कोर, it is overscore, yes, right, but sir? definitely whether it is T cross bar or not, it is a bar basically. Correct. It is not T cross bar, it is a bar and has the same meaning, and because it is in upper zone and it is a bar, so it has the okay. So upper zone में होने का क्या? Please go ahead.
अपर जोन में होने का क्या मतलब हुआ सर? अपर एज जोन को कट अपर जोन जो ड्राइव जितना ड्राइव वाइड होगा ना उतना ज्यादा वो चर्च ओरिएंटेड, जो मैंने बताया ना, चर्च ओरिएंटेड एंड लीडरशिप होगी, तो वो चीज है जी फिलैंथ्रोपिक सर्विसेज में है ये। ओके सर। पेरेंटल स्ट्रेस किससे पता चलेगा? पी का जो डॉट सबसे टॉप में एक छोटा सा वर्टिकल है विथ नॉट है, जो नॉट है यस वो सर, वो मैंने उसी सीरीज में लिखा हुआ है, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो मैंने पूरी कोशिश की अपने तरीके से, बट ये है कि सर, समय याद आ इतना गया। रहता नहीं है, क्योंकि हजारों सिग्नेचर्स में फिर मैं करना है, बहुत सारे जो वैलिड डाटा नहीं मिलते उनको निकालना भी पड़ता है, तो ये तो मतलब इट इज द रिजल्ट ऑफ 10-15 days कंटिन्यूअस वर्किंग। सर जो सिग्नेचर की है उसके ऊपर जो डियरीज लिखा है, उसका डी जो है वो WD फॉर्म कर रहा है, और ऑल जो है वो स्पाइरल फॉर्मेशन हो रहा है। इसका कोई हाँ, हाँ। स्पेसिफिक है रीडिंग हाँ ऑल में? अभी हाँ ऑल में तो मतलब जो कनेक्टिंग है, जो गार्लैंड कनेक्शन है, जी। तो डेफिनेटली गार्लैंड कनेक्शन मींस टीम वर्कर है, प्लेयर है, तो फिलैंथ्रोपिक में तो डेफिनेटली आपको टीम चाहिए, वो चीज जो पर्सनल जो बोल रही है और जो कर रही है दोनों सेम है, तो अल्ट्रुइस्टिक है, मतलब ये नेचुरल ट्रू बंदा है, जो बोल रहा है वो कर भी रहा है, सेम चीज रिफ्लेक्ट हो रही है इसमें। सर पेरेंटल इश्यू, वो जो पेरेंटल स्ट्रेस है सी का नॉटिंग में, वो और जो हाँ। स्किन प्रॉब्लम होता है, वो दोनों में क्या डिफरेंस है? मुझे ठीक से ये हाँ। समझ में नहीं आया। हाँ अभी ये थोड़ा छोटा है, ये फ्लरिशमेंट नहीं है, ये स्ट्रोक है। फ्लरिशमेंट में ये जब ज्यादा हो जाएगा, नीचे भी आ जाएगा और बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब वो फ्लरिशमेंट हो जाएगा, और खासकर पहला लेटर जो है ना पीपीआई उसमें होना चाहिए। तो जैसे सी क्रॉस बार है, ये इसको फ्लरिशमेंट नहीं बोलेगी, क्योंकि ये पीपीआई में नहीं है, ये इट इज अ पार्ट ऑफ कनेक्टिंग द थिंग्स, एच फॉर्मेशन या उसके दूसरे तरीके से पर आएगा। सर शी इज टॉकिंग अबाउट लेटर सी का जो स्टार्टिंग स्ट्रोक विद अ नॉट है ना, हाँ, राइट? वो फ्लरिशमेंट नहीं है, वो एडिशनल स्ट्रोक है, वो एडिशनल स्ट्रोक इज इट नॉट कनेक्टेड विद द पेरेंट्स रिलेशन? या कनेक्टेड ना, वो तो लिखा हुआ, वही बोल रही है, पेरेंटल स्ट्रेस। और जो नॉट नोटिंग का है क्या मतलब होगा सर? नॉटिंग मतलब स्ट्रेस, ओके। आपको बताया ना, नॉट हुक टिक जर्क, नॉट जी मींस जी। इश्यूज, ट्रबल है, प्रॉब्लम है, इश्यूज है, और प्रॉब्लम है बेसिकली, और जो वर्टिकल करके जाके डॉट मारा है, तो इसलिए स्ट्रेस भी है, मतलब इट इज अ प्रॉब्लम एज वेल एज स्ट्रेस बोथ। स्ट्रेस में नॉर्मली क्या होगा, एंगुलर स्ट्रोक आएगा, बट इसमें एंगुलर स्ट्रोक नहीं आके ऊपर स्टार्ट में आप देखेंगे ना, एक डॉट बल्कि थोड़ा छोटा करके फिर नीचे आया है, तो इसीलिए। सर और नीचे जो नंबर जो स्ट्रेस लिखा है, लाइन, एक नंबर जो लिखा है हाँ उसका वन, क्या मीनिंग? वो मैम और भी रिसर्च करना पड़ेगा, वो 194 हो सकता है, मकान नंबर हो सकता है, और भी कुछ हो, का लकी नंबर हो। ओके, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। सर इसमें जो इन्होंने स्टार्टिंग में ऊपर डी बनाया है, तो मतलब मुझे किसी ने ये बताया था एक बार पहले कि इसका जो मतलब रिलेशन होता है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से होता है। एंड एक चीज और कि अगर जैसे ये डी है तो उसके बाद ये जो ओके नहीं एक्चुअली क्या है, डी में ये जो सर जो इसका नेक्स्ट लेटर आ रहा है, हाँ मैं बता रहा हूँ, डी का जो पहला स्टेप होता है ना, सेल्फ होता है, और ऊपर का पेरेंट्स से होता है, नीचे का और वो थॉट प्रोसेस से होता है, और बीच का जो होता है फीलिंग से होता है, और नीचे का गट फीलिंग से होता है। तो जो क्रॉस कर रहा है बीच में, डी जो क्रॉस कर रहा है, मतलब जो फीलिंग हर्ट हो रही है इसकी बेसिकली, एंड गट फीलिंग में भी स्ट्रेस है, मतलब शी जो फिलेंथ्रोपिक ड्राइव में जा रही है ना, इनको पर्सनल फीलिंग्स हैं, गट फीलिंग बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये इस पे जा रहे हैं बेसिकली। तो जो और स्पेशली ये सब चीजें जो डेविस जो बंदा है जिसको कर रहे हैं, ये उसके रिलेशन में है ये सब चीजें। तो सर अगर ये जो ऊपर से जो स्ट्रोक बीच में जाके टच हो रहा है, अगर ये स्टार्टिंग में ही मतलब जो लाइन है उसके ऊपर ही अगर टच होगा, तो इसका क्या मतलब होगा? हाँ ये है, ये जो गैप है ना, ये मदर से रिलेशन, और नीचे वाला अगर वो जो आ रहा है वो फादर से रिलेशन होता है, ऊपर का मदर से रिलेशन होता है। मदर है बट कनेक्शन में नहीं है, वो कवर उस पर्टिकुलर जगह को कवर तो कर रहे हैं बट कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब मदर तो है बट दूर है, कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये डी लेटर में आएंगे, ये लीटर में आएगा उसमें। सर क्योंकि ये डी है, सर डी है मतलब फिजिकल डिस्टेंस है ना, मतलब पास में नहीं रह रहे हैं। हाँ राइट, गैप, लेकिन गैप अगर इन आई में रिलेशन। होता
अगर हाँ। आई में ऐसा होता तो फिर इमोशनल कनेक्शन नहीं है। नहीं, आई तो पर्सनालिटी इंडेक्स है, वो मदर बार एंड फादर बार, वो तो उसमें फिर ये पता लग जाएगा उसमें कि आप कितना अटैच हो, कम एंड कंपेरेटिवली मदर फादर से कितना रेशियो है, वो पता लगेगा हाँ इसमें। हाँ यस। इसमें वो क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे, अभी गैप है बस, बट वो उसको जो रिलेशन को क्वांटिफाई करने के लिए आई देखना पड़ेगा, इसीलिए यू नीड लॉट ऑफ इनपुट्स, just like that you cannot make your assumptions and theories and all. No, you should, whatever you say, you should have some backup, graphological trait उसके साथ होना है, और उसके लिए Yes, ट्रेस sir. होने यहाँ के लिए पे फिर उन्होंने आप कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऐसा कुछ इसमें दिख रहा है, वो नहीं है, यू मीन टू से ये हाँ जो हाँ DW इसमें है, नहीं, हाँ इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा। तो इसमें सर सम काइंड ऑफ इरिटेशन विथ फीमेल रिलेशनशिप ऐसा कुछ है? नहीं, फीलिंग जो बीच में जो क्रॉस फीमेल कर के रहा है ना, साथ हाँ हाँ कोई हाँ हाँ हाँ, फीमेल के फीमेल साथ रिलेटेड कुछ, हो सकता है, Okay. मदर के साथ रिलेशन गड़बड़ हो और वो हर्ट हुआ हो, इसीलिए हो सकता है मदर ने किया या इनने किया, इसलिए वो गैप भी आ रहा है। ओके सर। It is not libido driven, it is relation with the opposite sex, but अब अपोजिट सेक्स भी नहीं है तो सेम है, लड़की ही है तो वो मदर में जा रहा है, तो उसमें आप बोल नहीं सकते ना उसको लिबिडो, आप बोल नहीं सकते, वो एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं बोल सकते उसमें फिर आप। No, but it is some kind of relation disturbed with a female. फीमेल, यस यस, जो Okay, ऊपर sir. वाला है तो मदर है, ऊपर वाला है तो Right. मदर है, नीचे का है फादर है, और फादर के साथ स्ट्रेस है, उसमें आप गैप नहीं है, कनेक्शन है, बट विथ शार्प हुक, शार्प Retracement है एंगल, सर, हाँ retracement. रिट्रेसमेंट, ठीक है ना, ये क्रिस सर कॉर्नर। उसमें लव जो लिखा हुआ है उसमें एक नीचे में एक स्ट्रोक जा रहा है ना, लव जो हाँ, लिखा हुआ है। नीचे जा he is driven by love basically. हाँ He is driven, he is getting anchored, anchoring है basically, and E जो है एंकरिंग तो clearly, सर हाँ एंकरिंग एंड पेट पॉइंटेड आएगा ना, ये तो सर वेबर हो रहा है सर। नहीं इसमें बॉडी शेप आ एंकरिंग रहा है, तो वर्टिकल स्टिफ आएगा ना सर, नहीं ये एंकरिंग तो हिल रहा है। नहीं हिल नहीं, एक्चुअली वो बॉडी शेप है बेसिकली, इफ यू सी, एंड ई भी बना रहा है, वो कैपिटल ई दिख रहा है, आप देखेंगे तो ई ही लग रहा है वो, it is not a wavering, it is a forming E basically. He is giving true meaning to love basically, he is deep into the love with true respect and survival is on involvement. love because it's going into the lower zone, so survival is on love, matlab Yes, she is giving yes, lots of importance to love. Importance to love, yeah, that's why वो immerse हो रही है उसमें, immerse हो रही है नीचे जा रही है। और सर इसमें जो सरनेम यूज नहीं किया हुआ है और जो मिडल पार्ट है वो काफी इसको ये क्रॉस किया हुआ है। हाँ राइट, देखिए जो सरनेम जो होता है ना, जब जितने भी हमारे इसमें भी देखिए, जितने भी IT के बंदे लोग हैं जो सरनेम यूज नहीं करते, अपना ही नाम यूज कर रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं अपने पे, और वो सोचते हैं मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा अपने दम पे, इतना ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, एंड दे डोंट वांट टू एनी सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, एंड दे डोंट टेक केयर आल्सो देयर फैमिली, दे डोंट बॉदर अबाउट देयर फैमिली। तो जो अपना फैमिली नाम नहीं लिख रहे हैं, तो वो दे डोंट कंसीडर फैमिली as a support or as a sharing, caring and all. They believe more on themselves rather than taking care and support and doing for them. This is what is being done. And sir, they don't take family as part of their life. Part of their, yes. They don't take their family as a integral and essential part of their day-to-day decisions and life. This is what basically absence of family name is this. अभी आजकल देखिए ना, जितने भी मैक्सिमम लोग अपना नाम लिख रहे हैं तो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, बाद में फिर लिव इन रिलेशन में एक दूसरे को लात मारते रहते हैं, कभी कोई किसी के साथ जाता है, कोई किसी के साथ जाता है। अपना कॉन्फिडेंस तो अच्छा रहता है, बट कॉन्फिडेंस टूटते देर भी नहीं लगती, बिकॉज जो अगर फैमिली ले रहे हैं तो आप सोशल कंसर्न, बाकी चीजें, नॉर्म्स उनको फॉलो करते हैं, तो वो रिलेशन ज्यादा चलता है। वो रिलेशन रहता नहीं है तो फिर टूट भी होती है, फिर लोग कूद भी जाते हैं। यंग लोग देखिए, बाल सफेद हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही जो उनको उस उम्र में नहीं होनी चाहिए। राइट सर। तो सर, और राइटिंग ओनली नेम कैन अफेक्ट योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, अभी जो आपने कहा उसमें वो ब्लड फ्लो भी देखना पड़ेगा, ब्लड फ्लो भी देखना पड़ेगा।
एक्चुअली ब्लड फ्लो जो है ना, आपका जो बाल जो है उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई कहाँ से होता है? देखिए स्पेशली जो सिर के बाल हैं, वो जो ब्लड जा रहा है बहुत अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। पहली बात तो ये, आपके जो सिर के ऊपर जो सिर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है। और दैट टू जो आपके जो हृदय से जो नलियां, जो मेन आर्टरीज निकल रही हैं दो, एक लेफ्ट एंड राइट में जा रही है वो मोटी वाली, उसका आधा इसमें जा रहा है ऊपर, और वो भी अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो बहुत कम जाता है बेसिकली। और थोड़ा सा भी इसमें जो अगर ये जो प्रेशर है, कंटिन्यूटी फ्लो, वो अगर गड़बड़ होगा तो डेफिनेटली वो न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे आपको, वो ग्रे का होगा उसमें वो, बिकॉज ब्लड फ्लो ऐसा है। किसी ने पूछा भी था, मैंने देखा भी है, तो आई एम वर्किंग ऑन इट। वो बताएंगे ग्रे का जो व्हाइट होने के लिए इसको थोड़ा काम और करना है। आई एम नॉट कंक्लूडेड व्हाट आर द बेसिक ट्रेट्स, वो कंक्लूड नहीं हो पाया, बट डेफिनेटली ये फ्लो में, ब्लड फ्लो में, और कोई नहीं। ओके सर, थैंक यू। क्रिस कॉर्नर अगेन, ये देखिए जो क्रिस का सी का देखिए कितना लाइन दे दिया उसने, और दैट टू लेफ्ट स्लैंट, जस्ट लाइक इट लुक्स लाइक ए वी। और जो सर सेकंड हॉरिजॉन्टल के बदले वर्टिकल सी हो गया है। वर्टिकल सी हो गया है और लेफ्ट स्लैंटेड हो गया, एक्सट्रीम लेफ्ट Right. स्लैंटेड। एंड वो जो उसका जो सेकंड स्ट्रोक है वो कनेक्टिंग स्ट्रोक है, वो एच के लिए, वो एच आया है, एच, ठीक है ना। तो तो इसका मतलब, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्ट्रोक आ रहा है वो फॉरवर्ड हो रहे हैं। इट मींस दिस फेलो हैज मल्टीपल स्लैंट विद मल्टीपल कन्फ्लिक्टिंग स्लैंट। तो इमोशनल कन्फ्लिक्ट बहुत है बंदे के साथ में, ठीक है। और लेकिन सी तो दिख ही नहीं रहा है, वी के जैसा बना हुआ है। वी भी नहीं है, सी एक डंडी है लेफ्ट लेटी हुई, बेसिकली वी का हाफ ओके, हाँ, यस, वर्टिकल हो गया है, वर्टिकल। या ठीक है जी। तो अब देखिए, मतलब इसमें केयरिंग शेयरिंग तो कुछ चक्कर ही नहीं है, ठीक है। दिस फेलो इज बेसिकली अ म्यूजिशियन। तो और इसके जो गाने सुनेंगे ना तो बहुत अच्छे हैं, बहुत हार्श हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बीट्स पे जाता है। और इसका आप जब देखेंगे तो इसको जो ऑक्टेव है, वन ऑफ द ऑक्टेव जो फोर्थ, चार गुना पिच पे जाता है। तो वेरी केयरिंग एंड वेरी फुल ऑफ ड्राइव, बट पेनफुल है, एंजॉयमेंट नहीं है। So this has a 4 octave pen. आप देखेंगे ना, he is a catalog as a songwriter and he is nearly a 4 octave vocal range इसकी। ये देखिए जो लिखा हुआ उसमें। So he put energy to the maximum. You cannot 4 octave में जाना, it is a very big thing, very big thing. And his powerful vocal belting techniques. So he is a very good musician, but वो जो traits है उसको constructively use किया उसमें। अब जो पेस्टी प्रेशर है एंड लेजिबिलिटी तो है। लेजिबिलिटी हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि कर्व को स्टेट कर दिया, बट वो सी लिख रहा है, दिख भी रहा है, उसको मालूम है मैं सी लिख रहा हूँ। वो डी भी नहीं लिख रहा और ना जी लिख रहा है, वो सी नहीं लिख रहा है, बट स्ट्रेट लाइन, उसने कर्व को खाली स्ट्रेट किया है। So he wants स्ट्रेस और एंगर भी तो है लास्ट में, क्लब स्ट्रोक बहुत हेवी है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले। तो यही चीज इनके सॉन्ग में आ रहे हैं, और इसके गाने की जो स्टाइल है उसमें भी यही आ रहे हैं। आप इफ यू सी दिस सिएटल, वॉशिंगटन एंड डेफिनेटली जो मल्टी स्लैंट है एंड हायर, इसके जो बेस लाइन भी ना एरेटिक हो गया, मतलब नीचे तो स्टार्ट तो हो रहा है 45 डिग्री, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल हो गया, उसके बाद फिर नेगेटिव साइड में जाएगा। तो बेसिकली ये इसका जो बेस लाइन वेरी हो गया, बहुत एरेटिक हो गया। तो ये डेफिनेटली इट इज अ साइकिक फेलो, सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइकिक, because after his parents divorced, he was a teenager and he has a sibling adopted their mother's maiden name, Cornell, as their surname. So if you go through this history, you are able to connect all those things. सर इसका एच भी बीच में से कटा हुआ है, एच, लेटर एच अपर जोन में कटा हुआ है। हाँ, तो बेसिकली ये अगेन जो है, इसमें जो ब्लड फ्लो का या हार्ट का कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ही इज नॉट एबल टू, जो स्ट्रेस लेवल ले रहा है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो छुपा देता होगा, वो कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो रहा है उसका। ओके, मे बी
वो फिजिकली लंग पॉइंट ऑफ व्यू तो सिंग में तो कर सकता है, हो सकता है कि जो ब्लड फ्लो जो ऑर्गन्स हैं कहीं मेल फंक्शन कर रहे हैं, किडनी सर है उसका या जो कहीं ना क्रिस कहीं है, प्रॉब्लम होगा, वो देखना पड़ेगा, वो अगर देखना उसने पड़ेगा। सिर्फ क्रिस लिखा है, अगर क्रिस हाँ लिखा है हाँ CHR, तो आर हाँ, उल्टा वी बन गया है, उल्टा यू उल्टा जैसा आर्केड राइट। शेप, एंड आई आई डॉट बहुत खत्म हो लंबा गया, बना है और डॉट हाँ नहीं है। डॉट नहीं है तो वो गॉड फेयरिंग हो गया, ठीक है ना, एंड एवरी काइंड ऑफ फियर हो गया उसमें, हम्म ठीक है, अगर डॉट मिस हो गया तो ठीक है। और इसमें जो गैप आ गया है ये फिजिकली हो सकता है, वॉइस में या गाने में ना समझ में आए, बट उसका हो सकता है ऑर्गन में इसके जब बाकी हेल्थ रिकॉर्ड्स आप देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई ऑर्गन इसका काम करना बंद कर रहा हो, बीच में माइल फंक्शन होगा उसका, मे बी इसने ये जो फिल्टर ग्राफिक रिलेटेड। बना है सर, इज इट रिलेटेड टू सम म्यूजिकल नोट? ये जो ग्राफिक बना है उसके हाँ सिग्नेचर हाँ, के ऊपर, या ये हमेशा नहीं नहीं होता है? नहीं 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 ना? नहीं ओके नहीं, ओके। ग्राफिक नोट जो रहेगा म्यूजिक में आप देखेंगे तो हमेशा उसमें स्ट्रेट लाइन तो होती है, बट कर्व्स भी होते थे, छोटे बड़े गोल गोले भी होते हैं, वो गोला गोला तो कुछ भी नहीं है इसमें, वो सब अपर जोन में जा रहे हैं, तो वो चैलेंज इसमें आर्केड में आ रहा है, बेसिकली गोले जो आ रहे हैं नीचे में नहीं आ रहे, कंप्लीट भी नहीं है, और वो आर्केड स्ट्रोक्स में आ रहे हैं, तो ही सर वांट्स टू ड्राइव द थिंग्स एंड शो ओके टू द वर्ल्ड दैट आई एम डूइंग दिस क्रिएटिविटी, ओके। बेसिकली सर आर्क जिस तरह आर्क जो गार्लिक, क्रिएटिविटी पे आ जाता है। अगर सर गार्लैंड सीनियर अगर मनी पॉकेट दिखाते रिट्रेसिंग है। हैं, हाँ जी, सर गार्लैंड सर अगर मनी पॉकेट दिखाते हैं तो ये आर्केड्स क्या दिखाएंगे? क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी, ओके आर्किटेक्चर, आर्ट से आर्किटेक्चर बने, आर्किटेक्चर क्या मल्टीपल है, इट इज अ फिलोसफी बेसिकली, आर्किटेक्ट बोलो तो क्या है, बोलते हैं ना, क्रिएट जैसे गांधी को नेहरू को बोलते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, कलाम हम्म को बोलते हैं आर्किटेक्ट ऑफ स्पेस, तो आर्किटेक्ट बेसिकली फिलोसफी है एंड क्रिएटिविटी इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, तो एंड दिस फेलो इज डेफिनेटली अ वेरी बिग नेम इन म्यूजिक, बहुत फेमस है। सर सी में यहाँ रिट्रेसिंग दिख रहा है शुरू में, फर्स्ट। शुरू में हाँ, वही वो स्ट्रेस है, वही प्रॉब्लम है उनका, मदर फादर रिलेटेड इश्यूज हैं ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ये लिखा, इसमें लिखा भी है, देखिए स्ट्रेस विद फादर एंड ड्यूरिंग चाइल्डहुड लिखा हुआ है इसमें, दिया हुआ ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू सर। थैंक यू। अभी जो कोई बोला था ना फ्लरिशमेंट, ये देखिए ये है फ्लरिशमेंट सी में जो दिया है, बट इसमें भी जो फ्लरिशमेंट है बेसिकली एक्साग्रेटेड नहीं है, और इसमें जो वेव शेप दे दिया है, तो ये जो वेव शेप है ये ह्यूमर बता देता है बेसिकली, इट इज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ओके, गुड सेंस ऑफ सर डिस्कनेक्ट हो गया था सी में जो डबल है, मतलब ये जो स्टार्टिंग स्ट्रोक है उसका क्या हाँ, मतलब है? पॉइंटेड तो है ये ही, उसके अलावा वो वेवी। हाँ एक्चुअली वेव है, जो वेवी अगर स्ट्रोक आ रहा है ना किसी भी लेटर में ऊपर आएगा, टी, इवन टी में भी जैसे टी क्रॉस बार वेवी आ जाएगा, तो ये गुड ह्यूमर, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, और ये जब लेफ्ट में जा रहा है, सी से लेफ्ट में गया है, तो इसका मतलब हो गया इनहेरिटेड टैलेंट से। सर इनहेरिटेड क्या, इनहेरिटेड ह्यूमर या फिर इनहेरिटेड मतलब जो बोलते हैं ना, बाप दादा से या पुराने जीन्स में जो चीजें चली आई है वो चीज है इनहेरिटेड बाय सर बर्थ, बाय बर्थ। इस केस में क्या इनहेरिटेड है? मतलब मुझे इस बंदे के बारे में पता नहीं है, तो व्हाट इज इनहेरिटेड, टैलेंट और मनी? इनहेरिटेड टैलेंट होगा, और जो बेसिकली जो वेव शेप है वो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है, और वो जो वेव शेप है वो लेफ्ट में जा रहा है, इट मींस वो इनहेरिटेड है, मतलब इनके मदर फादर में भी वो जो ट्रेट होगा वही ट्रेट इनमें आया है, वो सेंस, वो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर इनके फादर में और इनकी जनरेशन में होगा, वो सर जीन्स ये में लेफ्ट pass से जा नहीं रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, जैसा भी है वो लेफ्ट में है, अल्टीमेटली जो ओके सी है, अल्टीमेटली जी, सी के लेफ्ट में है ना, सी पीपीआई है, पर्सनल करेक्ट पर्सनालिटी, करेक्ट करेक्ट। सी के लेफ्ट में हमको रेफरेंस तो सी को लेना पड़ेगा, हमको उसको जो स्टार्टिंग स्ट्रोक को रेफरेंस नहीं ले सकते, हमारा ध्यान तो लेटर में जाएगा ना, पहले पहले जो लेटर है उसके रेफरेंस में लेफ्ट है या राइट वो देखना है। तो सर ये जो सर वेव है और ऊपर जो सी बना है, उस बीच में जो वैक्यूम है उसका कोई रीडिंग होगा? उसका रीडिंग है, बिल्कुल है, क्योंकि ये जो वेव पैटर्न दे रहा है वो पैटर्न सी को भी क्रॉस कर रहा है और बीच में क्रॉस कर रहा है, तो फीलिंग है,
तो इसकी जो ह्यूमर होंगे ना, सरकास्टिक ह्यूमर होंगे, मजाक वाले नहीं होंगे, पेनफुल होंगे, व्यंग होंगे, हास्य नहीं होगा, व्यंग होगा। हास्य और व्यंग में तो थोड़ा सा सर फर्क है। ऐसे वेव्स जो होते हैं वो लेटर टी में भी होते हैं, लेकिन सर टी उसको में, हम हाँ, लेफ्ट टू राइट लेके जाते हैं। बट उसमें भी वही आपको वही देखना पड़ेगा कि टी का जो जितना राइट जा रहा है, वो जो बैलेंस है वो एक्स्ट्रा है कि नहीं, वो यू हैव टू जज इट कि वो एक्स्ट्रा है कि नहीं। अगर एक्स्ट्रा है तो इनहेरिट होगा, नहीं होगा तो सेंस ऑफ ह्यूमर है, दैट्स ऑल, फिनिश। ही इज द इनबिल्ट ह्यूमर, नॉट इनहेरिटेड, बट ही इज ओनिंग दैट, ओके सर। इज अ पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी। सर अब सर यहाँ जो इसके सिग्नेचर में हम्म, प्लीज गो अहेड अनुपमा जी, गो अहेड। प्लीज। अच्छा, यहाँ जो वॉइस लिखा है उसका बी जो है वो मुझे लोअर केस लग रहा है, मैं राइट सर? यस, बॉयस वो लोअर केस ही लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। एंड ओनली बी लिखकर ऐसा एलोंगेटेड कर दिया है एज एलंगेट कर दिया, पैरेलल टू दिस अंडरस्कोर। बेस लाइन, यस यस। और वाई का लोअर जोन खत्म कर दिया, मतलब दिस फेलो इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द रिसोर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ही वांट्स टू मूव अहेड, आगे सर जाने एक का और जल्दी बात, जाता है। सर ये बेस लाइन में जो अंडरस्कोर या सपोर्टिंग कोई भी लाइन रहती है उसका क्या मतलब होता है? जैसे इसने तो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दोनों को ही सपोर्ट कर रखा है, बहुत सारे लोग सिर्फ सेकंड मतलब जो उनका सरनेम होता है सिर्फ उसको करते हैं, उनका उसका क्या मतलब होता है? हाँ, अभी देखिए, सपोर्टिंग लाइन जो रहता है, बेस लाइन है, बेसिकली सपोर्टेड लाइन, यू गेट द एक्स्ट्रा हाइट इन योर लाइफ। बट अगेन इसमें अगर दो स्ट्रोक में है, मतलब इनकी जो हाइट अचीवमेंट हुए दो पार्ट में हुए। सिंगल, नॉर्मली सिंगल स्ट्रोक होता है, आपने देखा है, जितनी भी अंडरलाइन होती है नॉर्मली सिंगल स्ट्रोक होती है, इनकी राइट। डबल स्ट्रोक, तो दो हिस्से में, मतलब वो चीज दो बार में बनी है। तो सर सिग्नेचर में अंडरस्कोर जो होता है वो प्रेफरेबल होता है या नहीं, रेकमेंडेड होता है या नहीं? रिकमेंडेड वो करना अच्छा होता है, रिकमेंडेड तो नहीं है, ओके बट ओके अच्छा होता है, बट अच्छा होता है। सर आपने डबल स्ट्रोक के लिए क्या कहा? डबल स्ट्रोक अंडरस्कोर के लिए आर यू देयर सर? कोई बता सकेगा, किसी ने सुना है डबल अंडरस्कोर के लिए क्या कहा डबल स्ट्रोक में? सर ने बोला डबल स्ट्रोक के लिए कि उनकी लाइफ की अचीवमेंट दो पार्ट में हुई है, क्योंकि वो बीच में ब्रेक भी है ना, इसलिए मतलब दो पार्ट में, इसलिए। थैंक यू। वेलकम।